I need you to eat the dream. I need you to sleep the dream. I need you to talk the dream. Because some days you're not going to feel like getting up. Some days you're not going to feel like keep going. And the dream is going to push you. You a beast until it's uncomfortable. You a beast when the weather is right. You a beast when coach tell you to do something that you're comfortable with. You a beast when you play in your position. You a beast when everything is going right. But sometimes stuff start happening where it's uncomfortable and you start to break, you start to bend, you start to fold. You gotta learn to become comfortable with being uncomfortable. It ain't always gonna be the way you like it. It's not always gonna be comfortable. The conditions ain't always gonna be perfect. But if you want this, if you really want this, you gotta learn to sacrifice. You gotta learn to give up to go up. To be able at any moment to sacrifice what you are for what you will become. I need you to get up and I need you to work like your professor is grading your paper. I need you to work like you got an examination. I need you to work like you're trying to get credit. I need you to work like you're trying to graduate. I need you to put in that work and put in that time. And I need you to outwork everybody. Every single day when I wake up, every minute of the day, every hour of the day, I have an opportunity. Every opportunity is the last opportunity. Every opportunity, I have to reprove myself again. Because the day you become content, the day you stop evaluating yourself, the day you stop growing, the day you stop getting better is the day you die. Is the day the person who's trying to catch you will get you. Ain't nobody stopping you but you. You not average, stop acting like it. You not average. Why you being average? You not average. Why you being good when you not good? You great. You phenomenal. When you gonna step up to the plate? And you have not given yourself enough credit to say, I just need to get up a half hour earlier and my whole life will change. I just need to get up 1 hour earlier. I just need to work 1 hour longer. I need to stop hitting that snooze button. If you were to make that one change, that one sacrifice, you would stop dreaming and start living it. I need you to dig deep. And I need you to make the rest of your life the best of your life. No excuses, just adjustments. Download this video and audio by becoming a member at Ben Lion. ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मिस्टर ब्रजेश, जितेंद्र, अंकिता रानी एंड प्रीति कुमारी, अनन्या, रोशन, सत्यजीत, सचिंदर चौधरी, रोशन कुमार, राम, आनंद सिंह बिष्ट। ऑल राइट, सो बहुत अच्छा लगा। आज काफ़ी लोग कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं, सो काफ़ी चीज़ें आज लाइव लाइव सी लग रही हैं। हाय जो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। या सो गाइज, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो जो भी चीज़ें हम लोगों ने स्ट्रैटेजी समझी, जो भी चीज़ें दीपांशु ने टेक्निकलिटीज़ आपको बताई, प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग आप लोगों को करी, उसके बाद सतेंद्र जी की अभी कुछ क्लाइंट से भी मीटिंग हुई है, काफ़ी अच्छा मीटिंग रहा हमारा उनके साथ भी। तो अब स्लोली एंड स्टेडीली अब प्रोसेस तो हम सबको क्लियर हो गया है। आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ कि पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, लीड लाने से लेके उनसे बात करने से पहले, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे प्रोसेस क्या हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, कम्युनिकेशन कैसे करना है, फॉलो किस स्टाइल में करना होता है, हाइप कैसे हमको बनानी होती है, वो सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं जोसर को बुलाना चाहता हूँ बिकॉज सर अभी अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में है, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनका शेड्यूल भी थोड़ा सा टाइट था, बट स्टिल सर इज सर, सो सर स्टिल विद अस। सो जो सर प्लीज़ थोड़ा सा लोगों को एम्पावर करिए, थोड़ा सा बताइए उन्हें, सो दैट कि जितने भी लोग आज हमारे साथ हैं उन सबको वैल्यू पता चले इस इंडस्ट्री की और हमारे हमारे लोग के बारे में, दुबई के बारे में। या प्लीज सर। नमस्कार, नमस्कार। आशुतोष ने बोला गुड मॉर्निंग। आपको लग रहा होगा शाम है, गुड मॉर्निंग क्यों बोला है? इसीलिए बोला है, मेरे को बोला उसने गुड मॉर्निंग। हाँ। आप सबको गुड इवनिंग। हम्म। कैसे हो? एंड यहाँ पे क्रिसमस का टाइम है, यू नो, एंड विद द फैमिली इन डैलस। सारा फैमिली मेरा, मेरे सिस्टर्स एंड अंकल्स एंड एवरीथिंग इन डैलस। अभी मैं सिस्टर के घर में हूँ। सो अभी आपने मोटिवेशनल वीडियो देखा। You know, motivational video can only affect you for 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. उस टाइम पे अपने पंप अप हो जाते हैं। आई थिंक समटाइम मुझे लगता है कि मोटिवेशनल वीडियोस हेल्प करते हैं हमको, एंड कि और कौन सी चीज हमको हेल्प कर सकती है।
कि जो लंबा टाइम टिका रहे है। ओके, आई पर्सनली फील टेकिंग एक्शन, इसमें मोटिवेशनल बोलते हैं, यस उसने बोला अभी एक्सक्यूज मत दो, ये करो वो करो वो करो, पर जब हमको पहला जो हमारी ड्रीम होती है, जो हमारी डिजायर होती है, उसका जब हमको थोड़ा सा फल मिलने लगता है ना, तो अपना थोड़ा माइंड सेट चेंज हो जाता है। यू नो, जब हमको हमारी अच्छी पहली कमीशन में से सपोज हम लोग गाड़ी ले सकते हैं, या घर का डाउन पेमेंट कर सकते हैं, या बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, या वी जस्ट इट गो आउट एंड हैव अ वेकेशन बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, जो काफी टाइम से नहीं किया है, तो वो थोड़ा पंप अप ज्यादा कर लेता है। पर उसके लिए डेफिनेटली एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो आज आप जो सुन रहे होगे आशुतोष से, आशुतोष इज नॉट जस्ट इंस्ट्रक्टर। मैं जो आ रहा हूँ यहाँ पे, हम लोग ने लास्ट कितने सालों से सेल्स किया हुआ है। मेरा जो आई एम 71 ईयर्स ओल्ड, December 1 को ये महीना बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हमारे फैमिली में काफी बर्थडेज हैं दिसंबर में। सो व्हेन आई वाज टर्निंग 70, मैं अहमदाबाद से हूँ ओरिजिनली, बाय द वे। 44 ईयर से मैं अमेरिका में हूँ, आप सबने मुझे मिला होंगे पहले। तो जब लास्ट ईयर में 70 ईयर का हो रहा था, और ये भी आप रिपीटली सुन रहे होंगे मेरे से, कि मेरा बस एक ही ड्रीम था कि अपने इंडिविजुअल सक्सेस तो कर लिया, इसको हम कंपनी सक्सेस कैसे कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मेरे को बस ट्राई करना है 2 4 5 साल में मैं कैन आई सक्सीड अ कंपनी। इसलिए इस लास्ट ईयर स्टार्ट किया था डोडानी ग्रुप रियल एस्टेट, एंड वी स्टार्टेड डूइंग दुबई। इट्स इतना बोल दूंगा कि इंडिविजुअल सक्सेस इज इजियर देन अ कंपनी सक्सेस, बिकॉज इंडिविजुअल सक्सेस तुम आप अपने आप पे कर सकते हो, नोबडी एल्स, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल, नोबडी इज अकाउंटेबल। सक्सेस और फेलियर आपके हाथ में है। एज अ कंपनी सक्सेस आप डिपेंड नहीं करते औरों के ऊपर, लेकिन डेफिनेटली आप लीडर कैसे हैं उसके ऊपर बहुत है। एंड लीडर, नॉट ओनली लीडर, क्या जो आपकी टीम है, आर दे एज लीडर्स, वो टेस्टिंग आ जाता है हमारा। तो बस वही सोचा है कि कंपनी सक्सेस करनी है। फिर वी हैड सम सक्सेस, पर अभी भी जो फुल ब्लोन सक्सेस होनी चाहिए, आई थिंक अभी हम दुबई में ऑफिस कर रहे हैं, बताएगा आशुतोष आपको। 1 1.5 महीने में हम दुबई में ऑफिस कर रहे हैं। अहमदाबाद में ऑफिस हैं जो धोलेरा के नजदीक है। अभी ये 2 प्रोजेक्ट हमने सोचे हैं। तो बेसिकली आज जो आप सीखने वाले हो, जो आपने देखा है, ड्रीम देखा है, जो दुबई में कमीशन है, धोलेरा के कमीशन है, उसको आज कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप, वो भी इम्पोर्टेंट है बहुत ही। तो इंडिविजुअल सक्सेस अटेंड होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इंडिविजुअल सक्सेस है ऑलरेडी, देन यू कैन बिल्ड अ टीम। टीम के बाद आप अपनी भी कंपनी खोल सकते हो। आप सब लोग यंग हो, तो यू कैन स्टार्ट योर ओन कंपनी, अगर आपको ड्रीम है तो। अगर आपकी इच्छा है, आपको उस कमिटमेंट है, गोल्स हैं, यू कैन डू योर ओन टीम, यू कैन डू ऑन योर ओन कंपनी ऑल्सो। सो बस मेरी यही शुभकामना है कि अगर मेरी कंपनी को सक्सेस करना है, तो हमारी कोशिश है आप सब सक्सेस हो, तो ही कंपनी सक्सेस होने वाली, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो आई विश यू ऑल ऑल द बेस्ट। मैं यहाँ पे भी वेकेशन में आया हूँ, तो थोड़ा बिजी हूँ फैमिली के साथ, पर आशुतोष का जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाट इज गोइंग टू शेयर विद यू टुडे। बुक में से पढ़ के तो काफी कुछ सिखा सकते हो, पर आशुतोष आपको उसका पर्सनल एक्सपीरियंस सिखाएगा। ओके, एंड नमस्कार, फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अगर मेरे से कभी भी किसी को कनेक्ट करना हो तो आशुतोष के थ्रू कनेक्ट करना, एंड आई अप्रिशिएट, एंड वी विल कनेक्ट अगेन। टेक ओवर आशुतोष।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइज, सर ने काफ़ी अच्छे से बताया कि इंडिविजुअल सक्सेस तो हमको मिल जाती है जब हम अपने टाइम, अपने एफर्ट्स किसी एक इंडस्ट्री में लगा देते हैं। 365 डेज जब हम डेडिकेट कर देते हैं अपने आप को किसी इंडस्ट्री के अंदर, जिसके हम लोग डेडिकेशन के साथ, अच्छी मेंटोरशिप के साथ, अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ फुल फ्लेजेडली काम कर रहे हैं। दिन के अगर 4 घंटा 5 घंटा भी अगर आप लोगों से बात कर रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट बता रहे हैं, तो मान के चलिए कि साल भर के अंदर जब आपका 365 डेज कंप्लीट होंगे, जब आप उसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि कितने एफर्ट्स लगाए हैं आपने, कितने पॉकेट से आपका पैसा गया, उसके बाद आपको रिटर्न्स कितने आए वहां से, तब आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं रियल एस्टेट के अंदर, आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। बट स्टिल बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जर्नी जो है पार्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि वो ऑलरेडी किसी ना किसी बिजनेस के अंदर होते हैं बट यहाँ पे पार्ट टाइम करते हैं। बट मैं जेन्युइनली आपको एक गारंटी के साथ आपको सबसे पहले एक चीज़ बोलता हूँ, हमेशा जब भी आप कोई बिजनेस बिल्ड करते हैं, जब भी आप कोई बड़ी चीज़ बिल्ड करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका माइंडसेट होता है। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है बिजनेस को लेके, आपका कन्विक्शन है कि आप यहाँ से कमाएंगे, आपका कन्विक्शन है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, तो बस फिर आपको अपने प्रोसेस, आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होता है। उसके बाद फिर जो भी चीज़ें आपकी होने वाली होती हैं वो ऑटोमेटिकली होती हैं। तो जब भी बिजनेस बिल्ड करेंगे, भले आप रियल एस्टेट करें, भले आप कोई जॉब कर रहे हैं उसमें आपको ग्रोथ लेनी हो, वट एवर द रीजन इज गाइज, जो भी आपको अपनी लाइफ में अगर कुछ बड़ा बिल्ड करना है, तो सब कुछ बिल्ड करने से पहले सबसे पहले अपना माइंडसेट आपको बिल्ड करना होता है। ठीक है। और आज मैं जितना भी आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ये दुबई रियल एस्टेट के ऊपर फोकस्ड होने वाला है, बिकॉज दुबई रियल एस्टेट मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है। आप सभी लोगों को पता है, इन टर्म्स ऑफ कमीशन, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, गोल्डन वीजा, लॉट्स ऑफ थिंग्स गाइस। अगर आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स आपकी जुबान पे होते हैं, आई एम टेलिंग यू कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना, कि जब आप अपने बायर से बात करना स्टार्ट करेंगे, अगर आपको वो बायर नहीं भी होगा, अगर आपको कन्विक्शन है कि वो चीज़ अच्छी है, आपके मन में आ रही है कि यार इफ मेरे पास पैसा होता तो मैं वहाँ 100% इन्वेस्ट करता, तो जेनुअनली मैं आपको गाइज एक बात बोल रहा हूँ, फिर आप क्लाइंट्स को ढूंढते नहीं है, फिर आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप जहाँ भी होते हैं, जैसे भी होते हैं, लोगों से जैसे आपका कम्युनिकेशन होना स्टार्ट होता है, थोड़ी देर के बाद जो आपके दिमाग के अंदर होता है वो आपकी जुबान के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाता है। और उसमें कोई भी आपको प्रैक्टिस नहीं करनी होती, बस ये है कि आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही होती है, आपके दिमाग में अगर कोई टारगेट सेट है, आपको कुछ करना है, तो वो कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपके दिमाग से आपकी जुबान पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एग्री करते हैं मेरी इस बात से? इंसान के दिमाग में जो चीज़ होती है ना, वो कुछ ना थोड़ी देर बाद उसके एक्शंस में दिखी जाती है। एक शराबी को आप देखेंगे जिसका फिक्स है कि रात को दारू पीनी है, वो कहीं बैठा है कहीं पे, लेकिन 8 बजे वो ठेके के बाहर दिखेगा आपको, अपने दोस्तों को बुला लेगा। तो ये होता है इंसान का, जब क्लियरिटी होती है ना उसको कि कहाँ जाना है 8 बजे के बाद, उसको पता है। सो कॉर्पोरेट में काम करने वाले जो काम करते हैं उनको पता है कि रात भर कुछ भी करना है, लेकिन 10 बजे ऑफिस में पंच इन करना है अपने को। तो वो माइंडसेट जो होता है ना हमारा बन जाता है, वो डेवलप हो जाता है। उसी तरीके से जब हम बिजनेस की बात करते हैं, जब हम रियल एस्टेट बिजनेस की बात करते हैं, तो वहां पे भी हमको अपना कुछ माइंडसेट जो होता है वो बिल्ड करना होता है। पहले पहले हम धंधा बिल्ड नहीं करते, पहले हम माइंडसेट बिल्ड करते हैं। जब हमारा माइंडसेट बिल्ड होता है, उसके बाद फिर हमारा धंधा बिल्ड होता है। ठीक है। तो आज का सेशन मैं दुबई के ऊपर आपको स्पेशली बताने वाला हूँ, और मैं आपको थोड़ा सा इंपावर इसलिए करता हूँ बिकॉज मुझे पता है लाइफ में हम सबके कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है, कभी फाइनेंसेस ऊपर होते हैं, बट एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलता हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा अच्छा सोचिए। आप बहुत अच्छे लोगों की कम्युनिटी में हैं, आप जो भी टाइम आज यहाँ पे लगा रहे हैं, जो भी आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके बदले में आपको 10x ज़्यादा वैल्यू मिलने वाले हैं, अगर आप जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको करना स्टार्ट करिए बस आप। ठीक है। तो सबसे बेस्ट चीज़ आप लोग की क्या है कि अच्छे से सुनिएगा और कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा एकदम। जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन क्लियर होगा, कोई भी चीज़ समझ में आएगी, समझ में नहीं आएगी, आप मुझे उसमें बताइएगा, उसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, सबसे पहले हमारा होता है माइंडसेट। वेन एवर वी आर, मैं आपको माइंड मैप से शेयर करके दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, सो दैट आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। ओके। ठीक है। सबसे पहला मैंने आपको बताया था। ओके। दुबई बिजनेस, दुबई रियल एस्टेट बिजनेस। ठीक है। सबसे पहला होता है बिल्ड माइंडसेट। गाइस, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी माइंडसेट, और माइंडसेट बहुत बड़ी चीज है, बहुत 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 बड़ी चीज है। आप लीड्स के ऊपर पैसा लगा लीजिए, आप टेलीकॉलर रख लीजिए, आप बिल्डर से अच्छे टर्म्स बिल्ड कर लीजिए, आप मेरे से अच्छी बातें करना स्टार्ट कर दीजिए, बट ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपकी अलाइन नहीं होंगी ना, ठीक है, अगर आपके अंदर ये कन्विक्शन नहीं होगा, आपके अंदर वो चीज़ नहीं होगी कि यार मुझे इस प्रोसेस को फॉलो कैसे करना है, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके कभी भी यूज़ में नहीं आने वाली है।
तो बिजनेस बिल्ड करने से पहले सबसे पहली चीज आपको जो करनी होती है वो करनी होती है अपना माइंडसेट बिल्ड करना होता है। बिना माइंडसेट की चीजें शॉर्ट टर्म में कभी कभी हमको रिजल्ट मिल जाते हैं अगर हमारी किस्मत अच्छी होती है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर हमको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इन दिस इंडस्ट्री, मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर क्या देखा है ना, कि लोग आते हैं, बहुत मोटिवेशन के साथ काम करते हैं, कुछ लोग पहले दूसरे तीसरे महीने के अंदर पैसा कमाते हैं, फिर वो क्या करते हैं ना, फिर वो थोड़े से लेजी हो जाते हैं, फिर वो काम करना छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर उन फंड्स को एंजॉय करते हैं, उन फंड्स को यहाँ लगाते हैं वहाँ लगाते हैं, उनको लगता है कि काफ़ी पैसा है उनके हिसाब से। बिकॉज गलती उनकी नहीं है, इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा ही इतना है। अगर आप जेन्युइनली डेडिकेट होकर कर काम करते हैं ना इसके अंदर, और जो आपके पे आउट्स आते हैं, वो आपके पे आउट्स बड़े ही आते हैं, छोटे नहीं आते। बिकॉज आप यहाँ पे कोई विंडो नहीं सेल करते हैं, आप कोई दरवाजा नहीं सेल करते हैं, आप कोई पार्किंग नहीं सेल करते हैं। जो भी चीज़ आप लोग की सेल्स जो भी आप लोगों की सेल्स होती है वो पूरे का पूरा ट्रांजेक्शन जो होता है पूरे के पूरे अपार्टमेंट का होता है, पूरा का पूरा लैंड पैच का होता है। ठीक है। और वो लाखों में जाता है, हजारों में रियल एस्टेट कभी नहीं आता। मतलब ऑन एन एवरेज भी कम से कम भी अगर आप सेल करेंगे 6-7 लाख रुपए का आपका टिकट साइज है ही। और दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो भी इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगाएगा, वो इंसान इन्वेस्टमेंट करेगा या सेल्फ यूज करेगा, दो ही तरीके के लोग आपको मिलने वाले हैं। तीसरा कोई नहीं मिलेगा आपको। तीसरा भी मिलेगा किसी के पास बहुत पैसा है तो वो भी इन्वेस्ट ही कर रहा है, पार्क कर रहा है अपने पैसे को। ठीक है। तो उसको कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छे आने वाले टाइम में उसको ग्रोथ मिलती है वहां से, क्योंकि रियल एस्टेट एसेट्स ही होते हैं। तो पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जिस भी इंसान का फंड्स लगवा रहे हैं, जिस भी जगह पे, जिस भी प्रोजेक्ट पे, उसके फंड्स के ऊपर आने वाले टाइम के ऊपर ना उसको अच्छी एप्रिसिएशन मिलनी है, अच्छी ग्रोथ मिलनी ही मिलनी है। पहले आपको अपने आप अपने अंदर ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये एक्सेप्टेंस जब आपके अंदर हो जाएगी ना, फिर आपकी बातों में भी, वो स्टाइल में बात करने के तरीके में चीजें ऑटोमेटिकली झलकने लग जाती हैं। बट यूजुअली मैंने क्या देखा है ना, कि लोग जब बात करते हैं कुछ करते हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है उनके दिमाग के अंदर, क्योंकि जब हम खुद कंफ्यूज होते हैं ना, तब हम सामने वाले से बात नहीं कर पाते। एग्री करते हैं मेरी इस बात से? जब क्लैरिटी हमारे माइंड के अंदर होती है ना, तो हम क्लैरिटी सामने वाले के सामने रखते हैं। अगर हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होगा तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, सामने वाले को भी आप कंफ्यूज ही करेंगे। भले आप सोच ले कि क्लाइंट पागल है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, आप बोल रहे हैं वो सुन रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। हम अगर कंफ्यूज होते हैं तो सामने वाले को हम कंफ्यूज ही करते हैं। ये बात अलग है कि क्लाइंट सुन रहा है आपकी, क्लाइंट आपको लगता है कि क्लाइंट सुन रहा है मेरी बात, ही इज लिसनिंग टू मी, इट मीन्स दैट कि मैं सही बोल रही हूँ या मैं सही बोल रहा हूँ। बट ऐसा होता नहीं है। इसलिए कभी भी कुछ ओवर प्रोमिसेस नहीं करने होते हैं हमको, जब भी हम रियल स्टेट की बात करते हैं स्पेशली। बिकॉज यहाँ पे आप लोग ना, फंड्स ना इंसान के लाइफ के जो सबसे बड़े कैपिटल्स होते हैं, जो उसके पास पैसा होता है वो लगाता है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे जब इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स की आप बात करते हैं तो आपकी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आपकी बोलने का तरीका, आपके दिखने का तरीका, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग, सब चीज़ें आती हैं। बट सबसे खूबसूरती हमारे सिस्टम की क्या है, कि आपको ये सब चीज़ें नहीं भी आती हैं, अगर आप फर्स्ट कॉल लीड जनरेशन करके भी अगर क्लाइंट हमें पास करते हैं ना, तो आगे की चीज़ें जो अलाइनमेंट की होती है वो सारी हम देख लेते हैं। बट स्टार्टिंग के 2-3 स्टेप के जो प्रोसेस है उसमें आज मुझे आप लोगों को स्मूथ करना है, सो दैट कि बिजनेस करना आप लोग स्टार्ट करें अपना। जो मेरा स्पेशलाइजेशन है वो मैं करूंगा। जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहां से आप लोग अपना काम करना बेटर स्टार्ट कर सकें, सारी की सारी प्रैक्टिकलिटी वाली चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो सब इसके बाद, माइंडसेट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा फर्स्ट कम्युनिकेशन। गाइस, फर्स्ट कम्युनिकेशन से आप लोगों को क्या समझ में आया, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, जिसको क्या लगता है फर्स्ट कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट कम्युनिकेशन से मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, जिसको जो भी आता है प्लीज। फर्स्ट कॉल। बहुत बढ़िया सतेंद्र जी, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपने लीड जनरेट करना स्टार्ट किया है, अगर आपने कोल्ड कॉलिंग करनी स्टार्ट करी है, ठीक है, तो वहां से जो आपको अपनी कॉल ओपनिंग करनी है वो आपकी बहुत सॉलिड होनी चाहिए। और यहीं पे हमारा बिजनेस शुरू होता है। ठीक है। यहीं से हमारी चीजें स्टार्ट होती हैं। तो जितने भी लोग आज हमारे साथ हैं इस सेशन के अंदर बैठे हैं, मैं आप सभी लोगों से एक चीज ये बोलना चाहता हूँ कि हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपकी जो कॉल ओपनिंग होगी, जहां से आप लोगों से, प्रोस्पेक्ट से अपने बात करनी स्टार्ट करेंगे, वो आपको हमेशा 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 बहुत सॉलिड रखनी है। क्योंकि वही एक ऐसा टाइम होता है जहां पे आप कस्टमर को लूज कर देते हैं और कस्टमर को गेन कर देते हैं। चलिए मैं एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बताता हूँ कि सपोज मेरा नाम आशुतोष है और मैं दुबई में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हूँ। ठीक है। मैंने ठक 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 रिसर्च करी, मुझे फिर एड्स आने स्टार्ट हो गए। मैं फेसबुक में मुझको एड्स दिख रहे हैं, मेटा में मुझको एड्स दिख रहे हैं, मतलब हर जगह मुझको एड्स दिख रहे हैं जहां मैं, एसईओ उन लोगों ने कर रखा है। मेरे पास एक नहीं आएंगे, मेरे पास 10 इंक्वायरीज आएंगी फिर।
मतलब 10 एड्स मुझे शो करेंगे, मैं 10 जगह इंक्वायरी डालूंगा। बिकॉज मैं क्यों एक जने से बात करूं? एक ऑप्शन दिखाया, फिर सेकंड भी दिखाया, फिर थर्ड भी दिखाया, फिर फोर्थ भी दिखाया। वहीं पे आपकी एंट्री होती है। सपोज प्रिंस मेहता की एंट्री होती है, अनन्या की एंट्री होती है, अरुण रॉय की होती है, किसी की भी एंट्री होती है। वो मुझे कॉल करना स्टार्ट करते हैं और मैं कंफ्यूज हूँ। मैं डिपेंड करता हूँ कि आशुतोष सर बात कर लेंगे, ठीक है। आशुतोष सर से मैं कनेक्ट कर दूंगा, मैं बस बेसिक बात करूंगा कि सर आप दुबई में देख रहे हो? बोलेंगे हाँ मैं देख रहा हूँ सर, जूम कॉल पे आ जाइए, मैं आपको समझाता हूँ। गाइस अगर इतना ही इजी रियल एस्टेट सेल करना होता ना, तो हर इंसान रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहा होता। ये बात आज आप मान लीजिए मेरी बात। जेनुअनली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर रियल एस्टेट इतना ही इजी होता ना, कि क्लाइंट, हम लीड जनरेट करते, क्लाइंट आता, क्लाइंट बोलता हाँ मैं देख रहा हूँ, और हम उसे दिखाते हैं और वो खरीद लेता। ऐसा भी होता है, लेकिन ये किस्मत बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मैं किस्मत के ऊपर मैं ज़्यादा भरोसा करता नहीं हूँ। एफर्ट्स हमको ज़्यादा लगाने चाहिए, उसके बाद फिर किस्मत 20% अपने आप आ जाती है, 80% हमारे एफर्ट्स ही होते हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले हमको जब अपनी कॉल ओपन करनी होती है, हमको अपने अंदर ना एक अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस, अच्छे लेवल की वॉइस मॉड्यूलेशन, और हमको पता होना चाहिए कि हमें बात क्या करनी है और हमें क्या बताना है। जिसके अंदर हमारा हुक भी होना चाहिए कि क्लाइंट सुने तो रुके। कहाँ पे हमें इमोशंस दिखाने हैं अपने, कहाँ पे हमको स्टैटिस्टिकल फिगर्स दिखाने हैं अपने। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें करनी होती है। अगर आप लीड जनरेट कर रहे हैं तब भी, तो आपकी कॉल ओपनिंग थोड़ी अलग होती है। अगर आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं तो आपकी एक स्क्रिप्ट अलग होती है। बट जनरली गाइस मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, दोनों के दोनों जो मेथड्स होते हैं ना, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जो भी लोग सक्सीड हुए हैं, जिन्होंने बेसिक ग्राउंड लेवल से काम करना स्टार्ट किया है, उन लोगों ने दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से किया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से किया है। पहली चीज़, सॉरी, पहली चीज़ आपकी, जब भी अगर आपके पास आपने लीड जनरेट करना स्टार्ट किया, आप में से मैं एक चैट बॉक्स में पूछा था, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी लीड जनरेट कर रहे हैं दुबई के लिए? कितने लोग ऐसे हैं, कोई है अभी जो जिसने अपना लीड जनरेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है? और कितने ऐसे हैं जो करना चाहते हैं? ठीक है, और जो जिन लोगों ने कर दिया वो लिखिए यस, और जो करना चाहते हैं वो लिख दीजिए मी। यस और सेकंड मी, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद लास्ट में अगर आपको लीड जनरेशन, आई वांट टू स्टार्ट दिनेश, यस ओके, मी लवप्रीत अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, रोशन कुमार मी करना चाहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो लोग भी अपना करना चाहते हैं वो लिखिए, सत्य निर्गुण, निर्गुण है, ठीक है। आई विल स्टार्ट बाय 1 जन, शिवम मल्होत्रा, ब्रजेश जी मी। गाइज आपको मैं जेन्युइनली एक चीज बता रहा हूँ, जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, इसकी सबसे अच्छी चीज आपको पता है क्या क्या आपको मिलने वाली है? कि जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजें ना आपके लिए एक स्टोरीज हो जाएंगी। और अभी जो दुबई के अंदर मोमेंटम है ना, देखिए, होता क्या है ना, बहती हुई गंगा में जो हाथ धो लेता है वो धो लेता है, ठीक है। जो अपने पाप धो लेता है, हाथ धो लेता है, कुछ इस तरीके से है वो, मुझे पता नहीं। जिस समय ना अभी डेवलपमेंट हो रहा है, जब भी अभी अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ बन रहा है, ठीक है, तो हम लोगों ने वहाँ का अजीजी वेनिस प्रोजेक्ट लेके आए हैं। वहाँ के वन ऑफ द बेस्ट 2 आरएम्स है हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास जैनेट है, एक हमारे पास जो सेकंड अभी मैं लेके आया हूँ, फैजल का नाम है जिनका। और जो अभी एक लेडी ने लिया था ये लास्ट वीक, ठीक है। तो फिर हमारे पास 2 बढ़िया आरएम्स हैं और दोनों सेल्स डायरेक्टर हैं। अगर कोई इंग्लिश वाला जिसको चाहिए, जिसको कोई वो फॉरेनर है जेनेट, वो भी अच्छे से समझाती है पूरा। और अगर किसी को इंडियन चाहिए जिसने बहुत अच्छी सेल्स करी है, वो जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, टेक्निकलिटीज एंड एवरीथिंग, ये सारी की सारी ना आप लोगों के लिए एक स्टोरी की फॉर्म में आप सुनेंगे और निकल जाएंगे। कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको जब तक आप लोग अपना लीड जनरेशन स्टार्ट ना करें। लीड जनरेशन गाइज, अगर आपने मंथली बजट बना के लीड जनरेट स्टार्ट कर दिया ना, तो एक बात याद रखिएगा, दुकान आपकी खुल चुकी है, माल आपके पास है, बेचने वाले सेल्समैन भी है आपके पास, मैं हूं आपके पास, जेनेट है आपके पास, आरएम्स है आपके पास। आपका काम बस ये है कि क्लाइंट को लेके आना है और बैठा देना है हमारे सामने। वहां तक का प्रोसेस के लिए आपको कोल्ड कॉलिंग भी करनी पड़ेगी, लीड जनरेशन भी करना पड़ेगा। क्योंकि दो ही चीज़ें होती हैं जो हर बार बोलते हैं, आप एफर्ट्स लगाते हैं और आप पैसा लगाते हैं। अब जो लोग लगता है कि यार बिजनेस की तरह देख रहे हैं, एक माइंडसेट स्ट्रांग बिल्ड करके आए हैं यहाँ पे, और यहाँ से सोच रहे हैं कि महीने का 2 महीने में इतना एक कैपिटल 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए बनाना है, और जो जेन्युइनली बनाना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। क्योंकि उसके लिए फिर आपको एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे। क्योंकि बिजनेस अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आपके एफर्ट्स और आपके जो कैपिटल आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाना है, इससे कम कैपिटल के अंदर आप कहीं वो नहीं बना सकते। जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ। और आप लोग के पास जब क्लाइंट्स आने स्टार्ट होंगे, जब आपके क्लाइंट्स जूम कॉल में बैठेंगे ना, दैट डे यू विल रियलाइज कि यार अगर मेरे पास ऐसे 10 क्लाइंट्स अगर और हो गए ना जो जूम कॉल पे आते हैं, तो ये मीटिंग्स कितनी अच्छी कर रहे हैं लोग, कि वो ऐसा हो ही नहीं सकता नाले। सतेंद्र जी, आई थिंक सतेंद्र जी यू आर हियर।
सत्येंद्र जी, अगर आपको आ रही हाँ है एक सेकंड, हाँ। तो हाँ सत्येंद्र जी, आप मुझे बताइए, परसों आपके एक क्लाइंट की जूम कॉल थी, मैंने जूम कॉल करी थी, तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपको समझ में क्या है जूम कॉल से, सो दैट कि जितने भी लोग हैं ना आज हमारे साथ, उनको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले कि मैं बोलता हूँ क्लाइंट से कराता हूँ तो कैसा रहता है, कितनी देर की जूम कॉल थी, क्या बताया आपको, क्या समझ में आया, क्या सा लगा आपको, प्लीज थोड़ा लोगों को बताइए, सो दैट जितने भी लोग आज हमारे साथ हैं ना, लोग आ रहे हैं सुनते हैं, लेकिन उनको उनके लिए एक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है, उनको उसके बारे में थोड़ा सा पता चलेगा एक प्लीज। छोटी सी लाइन आपने बोली थी जो काफी एकदम क्लाइंट को भी सोचने में मजबूर कर दिया था। आपको सिर्फ इन्वेस्ट करके रख देना और एप्रिसिएशन चाहिए कि इन्वेस्ट करके आपको रेंटल इनकम भी चाहिए प्लस एप्रिसिएशन चाहिए। सेकंड आपने हम्म। कहा था आपके पास इमीडिएटली आपके पास फंड डालने के लिए पड़े या फिर आप बाद में फ्यूचर में देख रहे हो 1-2 महीना रुक के। ये दो लाइन क्लाइंट को भी एकदम सुनने के लिए आगे मजबूर कर देता है, खुद भी सोच में पड़ जाता है वो कि क्या करना है उसको आगे। उसको भी क्लैरिटी मिल जाती है कहीं पर करे ना करे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मैं यही आप लोगों से बोल रहा हूँ कि पता है गाइस, हमारे इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। हमारे इंडस्ट्री की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लोग एम्पावर के मतलब एक अच्छे उसके साथ आते हैं काम करते हैं, बट यहाँ पे ना फेलियर रेशियो सबसे ज़्यादा है। दुनिया की किसी इंडस्ट्री में इतने फेलियर रेशियो नहीं है जितने रियल एस्टेट के अंदर है। जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ। और जो लोग इस इंडस्ट्री में टिक जाते हैं, जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते रहते हैं, ये पूरा का पूरा पेशेंस चेक करती है इंडस्ट्री, आपके आपको तोड़ेगी मरोड़ेगी सब कुछ करेगी, लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी ना इसके अंदर, तो ये आपको वो चीज़ देके जाएगी जो आपको कोई और इंडस्ट्री नहीं दे सकती। इतना ही मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आप लोग के लिए आती है फर्स्ट कम्युनिकेशन, विच इज़ कॉल योर फर्स्ट कॉल। आपको अपनी कॉल ओपन कैसे करनी है। जब आप कॉल ओपन करते हैं तो सबसे पहली चीज़, अगर आप अपनी कॉल प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं, अभी हम लोग हमारा जो फोकस है, अभी हम लोग का जो फोकस है वो फोकस सिंपल सही है कि हम लोगों को अजीजी वेनिस, कई अभी हम लोगों का फोकस सिर्फ एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, एक प्रोजेक्ट के अलावा कहीं मत देखिए, और वो एक प्रोजेक्ट को साल भर तक बेचना है हमें। ठीक है। एक प्रोजेक्ट पे जब मास्टरी हो जाएगी हम लोगों की, देन विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रोजेक्ट। क्योंकि मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आप लोगों को क्लैरिटी देना चाहता हूँ। क्लैरिटी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में, क्लैरिटी नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और क्लैरिटी हमेशा फोकस से आती है, एंड आपका फोकस सबसे बड़ा एसेट आपका, याद रखिएगा। ठीक है। एक प्रोजेक्ट पकड़िए, एक प्रोजेक्ट में ऐसा लेके आया हूँ या जी वेनिस जो नाम से बिकता है, बायर लेके आओ क्लोज करेंगे, लेके आओ क्लोज करेंगे, 10 मीटिंग कराते हो, एक दो क्लोजर्स 100% है आपके 10 मीटिंग में, इतना मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है। अजीजी वेनिस के ऊपर हम काम इसलिए कर रहे हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। उस प्राइस पॉइंट पे पूरे दुबई के अंदर कुछ नहीं है, और लोकेशन ऐसी जिसको अच्छे से लोकेशन समझा दी तो क्लाइंट कहीं जा नहीं सकता। जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा। और आप लोगों को आप 3 महीने 6 महीने उस प्रोजेक्ट की मीटिंग्स कराएंगे ना, तो आपको प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग ना ट्रेंड हो, कि अगर क्लाइंट अगर आपके सामने बैठे तो आपको आशुतोष अगर सर नहीं है, तो आप इतने ट्रेंड हो चुके हो मेरी मीटिंग में बैठ के कि क्लाइंट से बेसिक इंटरेक्शन तो अच्छे से कर लो, बेसिक नहीं एडवांस लेवल तक कर लोगे। और वो तब होगा ना जब क्लाइंट से मीटिंग्स कराओगे। ये सब नॉलेज है, ये सब कन्विक्शन बिल्ड करने के लिए, ये सब आपको एम्पावर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए सब अच्छा है। बट एक्चुअल लर्निंग्स आपकी तब स्टार्ट होती हैं व्हेन यू आर विद द क्लाइंट ओवर द जूम कॉल, ओवर द टेबल, एंड यू आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोजेक्ट, देयर बजट, फंड्स कितने हैं, कब करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट है, वो सारी की सारी चीज़ें। तो फोकस बस इतना रखिएगा कि प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग, जस्ट थिंक लाइक एन एजेंट। ठीक है। आपको बस दिमाग में ये होना चाहिए कि क्लाइंट्स कहाँ से लेके आना है, क्योंकि क्लाइंट आएगा तो रेवेन्यू आएगा आपके पास। ठीक है। तो फर्स्ट कम्युनिकेशन हमारा, जो लोग लीड जनरेट करते हैं उनके लिए किस तरीके से रहेगा, मैं किस तरीके से कहूँ। हाय सर, मैं आशुतोष बात कर रहा हूँ दुबई प्रॉपर्टीज से, कैसे हैं आप। बोलेंगे अच्छा हूँ, बोलो हाँ बताइए। सर एक्चुअली सर मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक 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 अपॉर्चुनिटी शेयर करनी थी। इस समय दुबई के अंदर सर इंडिया के 80% जो मेजोरिटी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स दुबई सर, दुबई रियल एस्टेट में। और आपको पता ही है सर, दुबई के अंदर टैक्स फ्री इनकम, 7 to 8% के सर रेंटल यील्ड्स, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स फ्री इनकम, गोल्डन वीजा, एवरीथिंग। तो फिर बोलेगा कि हाँ ठीक है। ये कोल्ड कॉलिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोल्ड कॉलिंग जिनको हम जानते नहीं है, ठीक है, उन लोगों को। और इसमें रिजेक्शंस मिलेंगे आपको, लेकिन फॉलो करना है आपको ये, ठीक है। बोलेंगे हाँ ठीक है। तो सर अभी हमारे मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए सर, वाटर फ्रंट कम्युनिटी सर, 80 मिलियन स्क्वायर फीट की कम्युनिटी जिसके अंदर सब कुछ है। अपना खुद का स्कूल, अपने खुद के वाटर फ्रंट कम्युनिटी, मतलब अजीजी वेनिस प्रोजेक्ट का नाम है सर। और वेनिस से आपको समझ में आ रहा होगा, वेनिस जो पूरा पानी के ऊपर बसा हुआ है इटली के अंदर, सेम कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है सर। अनऑब्स्ट्रक्टेड वाटर व्यू, मतलब जहां से दरवाजा खोलेंगे आपको पार्शियल व्यूज और फुल वाटर व्यू मिलने वाले हैं। खुद अंदर आपको पूरी बोट्स मिलेंगी उसके अंदर, कम्युनिटी के अंदर घूमने के लिए। 45 मिलियन 45 मिलियन
45 मिलियन स्क्वायर फीट की आपको पूरी की पूरी कम्युनिटी मिलेगी। आई गिव यू अ कॉल बैक। हाँ, 45 मिलियन स्क्वायर फीट की पूरी कम्युनिटी आपको सॉरी 80 मिलियन स्क्वायर फीट की पूरी कम्युनिटी है सर, जिसके अंदर आपको पूरा पानी के ऊपर विलास मिलेंगे, प्लस खुद का अपना ओपेरा हॉल है जो कि दुबई का सबसे बड़ा ओपेरा हॉल है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी फ्रॉम मेट्रो स्टेशन। दुबई के अंदर सर जो भी प्रॉपर्टीज है अगर उनको डायरेक्ट मेट्रो से कनेक्टिविटी मिल जाती है तो वहां के रेंटल यील्ड जो होती है वो ऑटोमेटिकली 2 से 3% ऊपर हो जाती है। ऐसा प्रोजेक्ट है सर जो दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पड़ोस में है सर। और ऐसे प्राइस पॉइंट पे है ना सर कि आप हिंदुस्तान में और दुबई में कंपैरिजन करेंगे सर, आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वहां पे इन्वेस्ट ना करें। तो सर आप अगर चाहते हैं इसके बारे में जानना, इसके बारे में थोड़ा सा और समझना सर, मुझे सिर्फ आपके 20 मिनट चाहिए। एंड आई एम 100% सर, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि ये 20 मिनट ना आपको वो चीज़ें बता देंगे सर जो आपको कभी नहीं पता थी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में, दुबई के बारे में, इंडिया के बारे में। तो आपके दिमाग के अंदर ना एक कंपैरिजन होगा कि मुझे इंडिया में लगाने चाहिए या मुझे दुबई में लगाने चाहिए। और दुबई आपको वो सारी चीज़ें दे सकता है ना सर जो आपके आने वाली 2 3 4 जनरेशन को पूरा वेल्दी कर सकती है। एंड दिस इज माई प्रॉमिस सर, दिस इज माई प्रॉमिस। जस्ट आई जस्ट वॉन्ट 20 मिनट्स फ्रॉम योर साइड। इतना बस आपको बोलना है। कैसी लगी आपको स्क्रिप्ट? इसके अंदर देखिए हुक भी था, इसके अंदर प्रोजेक्ट के बारे में भी था, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी मैंने बताया, उसको भी बोला कि वो सुनने में इंटरेस्टेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये थी कि आपकी एनर्जी होती है कोल्ड कॉल्स में। अगर आपकी आवाज बिल्कुल पेट से ही बाहर नहीं निकल रही है, अगर आपको कन्विक्शन ही नहीं है, तो गाइस किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि रैंडम फोन कॉल पे बात करके कोई आपसे प्रॉपर्टी बाय करेगा। हमको प्रॉपर्टी बेचने की खुजली है, हमको पैसा बनाना है। वी हैव टू मेक अ वॉइस लाइक दिस। वॉइस मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा, हमें जोर से आवाज निकालनी पड़ेगी, पेट से आवाज निकालनी पड़ेगी। क्लाइंट को बताना पड़ेगा, उसको ऐसा बताना पड़ेगा कि यार कुछ बवाल हो रहा है। सच में जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बवाल हो रहा है। अगर उसको लगेगा ही नहीं ऐसे यार कि कुछ हो रहा है, तो फिर वो क्यों बात करेगा आपसे? वरना एक कॉल ऐसी भी होती, देखिए। हाय सर, मैं आशुतोष बात कर रहा हूँ दुबई प्रॉपर्टीज से, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ सर। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर, दुबई के अंदर बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है। और पानी के ऊपर पूरा का पूरा है, अजीजी वेनिस नाम प्रोजेक्ट है। 1.4 CR का अपार्टमेंट है सर। अगर आप चाहें तो जूम कॉल अरेंज कर सकते हैं सर। क्या लगता है कितने लोग, कितना कौन बोलेगा मुझसे कि हाँ मुझ में करनी जूम कॉल? जेनुअनली बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कितने लोग बोलेंगे कि हाँ मैं करना चाहता हूँ जूम कॉल। कितने लोगों को लगता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक ही चीज मैं आप लोगों से बोलता हूँ, आपको पूरी नॉलेज नहीं है ना, अगर 30 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट तक बात करना, एनर्जी के साथ बात करना, वो सीख जाइए। स्मार्ट वर्क करिए। हार्ड वर्क क्या होता है? आपको दे दो, आपने कहा 300 नंबर करने हैं आपको कॉल, 400 नंबर करने हैं, 200 नंबर कर रहे हैं, आप 200 नंबर पे सेम एनर्जी लगा रहे हो, सेम एफर्ट्स लगा रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि आपको बात करने में दिक्कत है, प्रोजेक्ट समझाने में दिक्कत आ रही है, अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए और उसको इंप्रूव करिए। ठीक है? स्मार्ट वर्क ये होता है ना कि मैंने आपको बताया कॉलिंग ऐसे की जाती है, आप लोगों ने इस प्रोसेस को फॉलो किया, ठीक है? आपने दिन भर में 50 करी, आप लोगों के पास अपने खुद के भी काम, जस्ट मेक अ लिस्ट। हर दिन 50 नंबर पे रैंडम फोन कॉल्स आपकी होनी ही होनी है। मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, 50 नंबर पे रैंडम फोन कॉल जानी है आपको, जानी ही जानी है वो। इतना करिए आप सबसे पहले। और अपना महीने का 5,000, 7,000, 10,000 का बजट निकाल के साइड रखिए। क्योंकि आपको 5,000, 10,000 रुपये भी ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन जेनुअनली मैं आपको बता रहा हूँ, 10,000, 10,000, 10,000, 3 महीने में 30,000 रुपये आपके लग रहे हैं। एक डील भी अगर आपकी हो जाती है ना गाइज, साल भर का बजट निकल जाएगा, हमारे साल भर का बजट निकल जाएगा, कुछ पैसा पॉकेट में भी आएगा। जेनुअनली मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी लोग आज यहाँ पे हैं, मैं आप सभी लोगों से बोलता हूँ, दुबई इज राइट नाउ द हॉटेस्ट केक। आप सभी लोगों के शहर में इस समय एक्सपोज हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं। दुबई के ऊपर फोकस करिए, लीड जनरेट करिए, लोगों से बात करना स्टार्ट करिए, नेटवर्किंग करिए, हर जगह से रिजल्ट आपको मिलेगा। सेकंड कॉल आपकी इस तरीके से हुई थी, जो लोग लीड्स पे आपके आते हैं। हाय मिस्टर सतेंद्र, मैं आशुतोष बात कर रहा हूँ दुबई प्रॉपर्टीज से, कैसे हैं आप? बोलेंगे बढ़िया हूँ, अच्छा है, जैसे भी है। सतेंद्र जी अनम्यूट करिए, आपको मैं आपसे ही बात करता हूँ आज। हाँ हाँ या हाय, गुड मॉर्निंग मिस्टर सतेंद्र, मैं आशुतोष बात कर रहा हूँ दुबई प्रॉपर्टीज से, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। सतेंद्र जी, आपने एक्चुअली हमारा एडवर्टीजमेंट देखा था सोशल मीडिया पे और आपने इंटरेस्ट शो करा था। तो आप इस समय सर दुबई के अंदर कुछ, आई थिंक कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट 1 बेडरूम कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, राइट? जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो सतेंद्र जी मैं जान सकता हूँ कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। ओके। ओ माय गॉड सर, अहमदाबाद से अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, अभी हम लोगों ने एक्सपो भी किया अहमदाबाद के अंदर, लास्ट मंथ हम लोगों ने किया था अहमदाबाद के अंदर एक्सपो। और इस समय सर अहमदाबाद के अंदर से बहुत बिजनेस जा रहा है सर दुबई के अंदर। मतलब आई एम टेलिंग यू सर, ऑलमोस्ट 30% दुबई के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो गुजरात अहमदाबाद से गुज्जू कम्युनिटी के हैं।
बिकॉज आपको पता है सर किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। तो सत्येंद्र जी, आपने दुबई विजिट करा है सर कभी, इससे पहले कभी विजिट आपका हुआ है दुबई का? नहीं नहीं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, तो मुझे आपको बताने में बहुत अच्छा लगेगा कि दुबई क्या है। बिकॉज लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, मैं आपसे दुबई के बारे में बात करूंगा कि दुबई क्या है सर। ठीक है। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, बिकॉज मेरी कॉल जो है ना थोड़ा 5-7 मिनट 10 मिनट तक चल सकती है आपके साथ, अगर आपके पास टाइम है तो। हाँ, चलेगा सर। चलेगा ना सर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो सर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने इंटरेस्ट शो करा, वो सर एक वन ऑफ द बेस्ट आइकॉनिक लोकेशन पे प्रोजेक्ट है। जैसा कि अगर आप इंडिया से कंपेयर करते हैं, तो जहाँ पे एयरपोर्ट आता है वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वहाँ पे फिर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, वहाँ पे लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, उस तरीके से आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। एग्री करते हैं सर आप? क्या आप मैं ऐसा कह सकते हैं जैसे अपने धुलेरा में जो एयरपोर्ट आ रहा है उसी तरह का आपका आप दुबई कर, का? दैट इज योर कॉल, आप जैसे समझाने, मेरे समझाने का तरीका आपके समझाने के तरीके में फर्क होगा, लेकिन अच्छा। कॉन्सेप्ट जो होता है, कॉन्सेप्ट आपको लेना है यहाँ से। ठीक है। हम। उसी तरीके से सर आपको दुबई पता है सर, दुबई बहुत छोटा है सर, दुबई बहुत बड़ा नहीं है सर। और दुबई में 3 मेजर हाईवे हैं। फर्स्ट वन इज योर शेख जायद रोड, जहाँ पे पूरी मेट्रो है। सेकंड वन इज योर मोहम्मद बिन जायद रोड। थर्ड वन इज योर एमिरेट्स रोड। और दुबई 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है सर, जहाँ पहला आपका ओल्ड दुबई हो गया, उसके बाद सर वो उसके बाद फिर बिजनेस बे डाउनटाउन बुर्ज खलीफा वाला एरिया आ गया, उसके बाद सर पाम जुमेरा जेएलटी वाला एरिया आ गया, और अभी सर फोर्थ जोन जहाँ पे पाम जेबल अली, जो कि पाम जुमेरा से बड़ा हो रहा है, और उसके नीचे सर जेबल जाफजा जेबल अली फ्री जोन एरिया, और उसके नीचे सर हमारा है आपका अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे अभी सबसे मेजर डेवलपमेंट हो रहा है। वहां पे सर अजीजी डेवलपर, जो कि दुबई के सेकंड लार्जेस्ट डेवलपर में से एक है आफ्टर एमआर, जिनके 350 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं इस समय दुबई के अंदर, वहां पे सर ये 80 मिलियन स्क्वायर फीट की एक वाटर फ्रंट कम्युनिटी बना रहे हैं सर। वाटर फ्रंट कम्युनिटी से मतलब आप समझ रहे हैं सर, जो लोग बीच साइड घर नहीं खरीद सकते, ठीक है, क्योंकि शोरलाइन एरिया हमेशा एक्सपेंसिव होता है और वहां पे जगह नहीं है, तो इन लोगों ने 80 मिलियन स्क्वायर फीट की जगह ली है और उसको पूरा वाटर फ्रंट बना रहे हैं सर। नीचे पानी है, वेनिस के उसका प्रोजेक्ट का नाम ही अजीजी वेनिस है सर। बाय द नेम इटसेल्फ आपको लग रहा होगा अजीजी वेनिस अगर जिस प्रोजेक्ट का नाम है वो क्या प्रोजेक्ट होगा। सर ग्राउंड+8 ग्राउंड+12 स्टोरीज बिल्डिंग है उसके अंदर, खुद का ओपेरा ग्राउंड है, वो आपको बोटिंग करने के लिए बोट्स मिलती हैं, और वाटर फ्रंट एक्टिविटीज लगून्स, सर जो इमेनिटीज आप सोच सकते हैं सब कुछ वहां पे है। अनऑब्स्ट्रक्टेड वाटर व्यू सर। दुबई के अंदर जिन प्रोजेक्ट्स में मेट्रो की कनेक्टिविटी मिल जाती है, दीज प्रोजेक्ट्स इज ऑलवेज हाई इन डिमांड, और उनकी रेंटल वैल्यूज हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि दुबई के अंदर सर जो एवरेज काम करने वाले लोग होते हैं उनकी एज 24-25 से लेके 40-45 ईयर्स तक। तो अगर सर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं या फिर आप सेल्फ यूज के लिए देख रहे हैं सर? दोनों मिक्स, कुछ भी, दोनों चलाते हैं वो। ठीक है, दोनों देख रहे हैं। और कितना कैपिटल लेके चल रहे हैं सर, हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट ओवर देयर? अराउंड 1.5 से अराउंड। 1.5। तो मैं आपको बेस्ट चीज ये बोलूंगा सर, जस्ट गो विद वन स्टूडियो अपार्टमेंट, बराबर। गो विद वन सिंगल स्टूडियो अपार्टमेंट, और उसको आप करिए। और सबसे अच्छी चीज दुबई की खूबसूरती सर आपको पता है क्या, कि आपको सर पेमेंट भी अपफ्रंट पूरा नहीं देना। आपको मैं एक अच्छा सा पेमेंट प्लान बना के दूंगा, और आपको बेस्ट यूनिट निकाल के दूंगा, जो कि मेरे सेल्स डायरेक्टर से मैं बात कराऊंगा। हम लोग ओवर द जूम कॉल बैठेंगे, मैं आपको प्रोजेक्ट पूरा लाइव दिखाऊंगा, गूगल लोकेशन पे दिखाऊंगा पहले, आपको दुबई की प्रेजेंटेशन भी दूंगा अच्छे से, दुबई क्या है, फिर प्रोजेक्ट के ऊपर भी आऊंगा। अभी मैंने आपको ओवरऑल बताया सर, और मैं जेनुअनली आपको बता रहा हूँ सर, 2 साल पहले जब इन लोगों ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, 400,000 दिरहम्स का था, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 CR। आज की डेट में सेम लोकेशन सेम यूनिट का प्राइस सर 1 करोड़ 40-45 लाख से 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक है। यू कैन इमेजिन सर, 1.5 करोड़ के अपार्टमेंट में जिन लोगों ने 40% 50% अमाउंट दिया, वो लोग आज 50 लाख रुपए जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा था उतना वो बना के बैठे हैं। समझ रहे हैं आप, जितना लगा है 100% का कैपिटल एप्रिसिएशन बोलेंगे इसे हम। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की होगी, जिसकी अपना पॉकेट से कितना पैसा गया? 50 लाख। 50 लैक्स। कैन यू इमेजिन सर? मैं आपको वो अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूँ सर, आपको ईट स्लीप और रेव रिपीट करना है बस, इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट की दुनिया में दुबई के अंदर। तो सर ये ओवरऑल मैंने आपको बताया, अब आप मुझे बताएं सर कि मुझे आपका ना, आप मुझे 15-20 मिनट्स अगर आप देंगे, तो मैं जो मैंने आपको वर्बली बताया वो मैं आपको स्टैटिस्टिकल फिगर्स में बताऊंगा, पेमेंट प्लान्स, यूनिट, लोकेशन, स्टूडियो अपार्टमेंट, सब कुछ आपको बताऊंगा। और आपको पसंद आएगा सर, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, और ये आपका सेशन वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल। तो मुझे बस 20 मिनट्स दे दीजिए अपने, और मैं अपने सीनियर को भी लेके आऊंगा सर, सो दैट वो आपको बेस्ट यूनिट विद बेस्ट प्राइस दे सके सर। और अभी न्यू ईयर आ रहा है सर, न्यू ईयर में अभी डीएलडी वेवर भी है, क्योंकि दुबई के अंदर सबसे अच्छी चीज ये होती है, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं ये लोग, कुछ ऑफर्स ऐसे निकालते हैं कि 4% डीएलडी जो आपको पे करना ही पड़ता है, रजिस्ट्री चार्जेस, वो वेवर है सर अभी टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू की। तो सिर्फ आप सर टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू ही आपको पे करनी 50%, एंड आपके लिए वो पूरा का पूरा अमाउंट सर, बहुत बड़ा अमाउंट जो होता है वो सेव है। अच्छा।
ठीक है। तो गाइज, दैट इज ऑल अबाउट दिस। ये कॉल कैसी लगी प्लीज थोड़ा सा मुझे बताएं। इस तरीके से हमारी कॉल्स होनी चाहिए। ये जूम कॉल पर लेन का स्क्रिप्ट है, लाने का स्क्रिप्ट है। जी 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 दिनेश जी, ये स्क्रिप्ट नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये मेरा कन्विक्शन बोल रहा है, ये मेरी स्क्रिप्ट नहीं है कोई। ये स्क्रिप्ट बदल भी जाएगी, अभी कोई और सत्येंद्र जी की जगह कोई और आएगा तो बदल जाएगी। बट मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूँ, मैं आपको स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करके दूंगा। जो लोग लीड जनरेट करेंगे, गाइस मैं आज आप लोगों को एक चीज़ एंड में आपको कुछ स्पेशल चीज़ें और बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ स्पेशल चीज़ें मैं आपको और बताने वाला हूँ, बहुत स्पेशल चीज़ें हैं वो। और वो उन लोगों के लिए हैं जो जो जेन्युइनली, आप में से कितने लोग जेन्युइनली यहाँ पे आज आप लग रहा है कि जो बिजनेस करना चाहते हैं, आप जेन्युइनली यहाँ पे आके आप करना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, मेरे साथ पर्सनल लेवल पे काम करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं ना, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मी लीड जनरेट करना चाहते हैं। जो करना चाहते हैं, मैं आप लोगों के लिए डेली मॉर्निंग में एक कॉल रखूंगा। जो करना चाहते हैं, डेली मॉर्निंग में आप लोग की कॉल रखूंगा। ठीक है, डेली मॉर्निंग में आप लोग की कॉल रहेगी, जिसमें मैं आपको हर दिन सुबह 10 बजे या फिर 11 बजे कॉल रखूंगा। उसमें बताऊंगा आज करना क्या है आप लोगों को, डेली पर्सनल लेवल पे। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, आपको सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, और मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, और आप फॉलो करेंगे ना उसे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ना मिले, क्योंकि मुझे रिजल्ट मिला है, जिनसे सीखा है मैंने। क्योंकि मैंने दुबई के बेस्ट इंडस्ट्री लीडर्स के साथ काम किया गाइस। और लोग दुबई घूमने के जाते हैं, लोग फिरने जाते हैं, मैंने दुबई में रगड़ा है सिर्फ अपने आप को। सिर्फ रगड़ा है मैंने अपने आप को, मैंने कुछ घूमा फिरा नहीं हूं मैं वहाँ। काम से ही घूमता था, काम से ही प्यार था मुझे अपने, बस दैट्स इट। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए पता है क्या गाइस, आपको लीड जनरेट करना ही पड़ेगा। विदाउट लीड्स आपके लिए सारी की सारी चीजें ऐसे नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन के बाद फिर आपका आता है क्लाइंट साइकोलॉजी। स्पेलिंग स्पेलिंग हो सकता है कि थोड़ी गलत हो जाए, थोड़ा सा पता नहीं मुझे, लेकिन चलो ठीक है। क्लाइंट साइकोलॉजी गाइज, आपको हमेशा एक चीज देखनी है ना। देखिए जैसे अभी कोई बायर आपको ऐसे मिलेंगे जिनको दुबई के बारे में नहीं पता। बहुत से लोग होंगे जिनको पता है, बहुत से लोग होंगे जो ऑप्शंस देख भी चुके हैं, दुबई विजिट कर चुके हैं। तो हमेशा अपने दिमाग के अंदर एक चीज रखिएगा कि जो एक्सप्लोर करने वाला जो बायर है, जो एक्सप्लोर कर रहा है, जो देख रहा है अभी, वो सुनेगा आपको। ठीक है, हो सकता है वो और लोगों से भी टच में हो। दूसरा जो होगा, जिसने प्रॉपर्टीज देखी है, एप्रिसिएशन देखा है, जो बिजनेस माइंडसेट वाला है, वो कैलकुलेशन के ऊपर घूमेगा। ठीक है। और फिर तीसरा आता है डिसीजन मेकर, जिसने प्रोजेक्ट भी देख लिया, समझ भी लिया, नया है पुराना उससे फर्क नहीं करता, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर है उसके पास, तो आप उसको टाइमलाइन देके क्लोज करके पेमेंट निकाल सकते हैं उससे। हम लोगों को क्या करना होता है ना, हम लोगों को जब भी हम अपने बायर से बात करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें पहली चीज़ क्या करनी, कभी जज नहीं करना, ये लेगा ये नहीं लेगा, कभी नहीं करना। हर क्लाइंट्स पे अच्छे एफर्ट्स लगाइए स्टार्टिंग में। अगर आप मुझे बैठाते हैं किसी बाइक के साथ, तो शायद मुझे पता चल जाए कि ये लेने वाला है, लेने वाला नहीं है। बट अभी रियल जब आप, अगर आप नया काम करना स्टार्ट करें, कुछ करें, तो नेवर जज योर बायर्स। क्लाइंट्स को जज करना छोड़ दीजिए, क्योंकि कौन सा क्लाइंट कब क्लोज हो जाता है, क्या देता है, आपको नहीं पता। और हमेशा क्लाइंट के साथ अच्छे से बिहेव करिए, भले क्लाइंट कितना भी रूड है। क्लाइंट अगर बहुत इंटेलिजेंट है, आप अपने आप को थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट में दिखाइए। क्लाइंट अगर बेवकूफ़ है, तो अपने आप को थोड़ा सा इंटेलिजेंट दिखाइए। और क्लाइंट आपके पेस पे बात कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, रिएक्शंस भी आ रहे हैं, सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, उस क्लाइंट को अच्छे से नर्चर करके अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करिए। ये मैं आपको कुछ सीक्रेट बता रहा हूँ। ठीक है। और जो भी क्लाइंट्स जो आपसे बात करते हैं, जैसे कि अभी सत्येंद्र जी ने बोला दुबई विजिट नहीं करा, दुबई के बारे में पता नहीं है, ये सबसे बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स होते हैं गाइस। सबसे बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स ये होते हैं जो दुबई गए नहीं हैं, जिनको दुबई के बारे में कुछ पता नहीं है। उन लोगों को क्लोज करना सबसे आसान होता है। क्यों आसान इसलिए होता है, पहली चीज तो आप उन्हें समझाते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से उनको नॉलेज देते हैं पहले। ठीक है, अच्छे से नॉलेज देते हैं, अच्छे से बताते हैं, उनको चीज़ें समझ में आती हैं कि जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, उससे वो रिलेट कर पा रहे हैं। और इससे अगर वो रिलेट कर पाते हैं ना, उसके बाद फिर हम लोग उनको प्रोजेक्ट के ऊपर लेके आते हैं। अगर वो दुबई विजिट करना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, उसमें भी हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। तो सबसे अच्छे प्रोस्पेक्ट वो होते हैं जिनको नहीं, जिन्होंने इंटरेस्ट शो करा है, लेकिन हमें उनको लेके आना है, समझाना है, बताना है। तो हमारा काम एजुकेटर का है पहले, सेल्स का नहीं है। ठीक है। क्लाइंट से आप लोग का क्लाइंट, आपका लोग का काम क्या है, अगर आप लीड जनरेट करेंगे, आप कोल्ड कॉलिंग करेंगे, क्लाइंट से बात करना, क्लाइंट से बहुत अच्छे से बात करना, क्लाइंट को प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना, वो क्या है, वो क्या देख रहे हैं, वो सब चीज़ें करना। उसके बाद उन लोगों को जूम कॉल पे लेके आना, बेसिक बात करने के बाद। जब वो लोग जूम कॉल पे आएंगे, जब वो लोग हमसे बात करना स्टार्ट करेंगे, फिर आप लोग की रियल लर्निंग स्टार्ट होंगी, जब क्लाइंट मेरे साथ जूम कॉल पे होगा। फिर आप देखिए मीटिंग्स में कैसे ड्राइव करता हूँ पूरी।
कहाँ से लेता हूँ, कहाँ से लेके जाता हूँ उसे, प्रोजेक्ट पे लेके जाना है, प्रोजेक्ट से पहले क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। तो वो 25-30 मिनट के अंदर ना उसका इंटरेस्ट भी समझ में आता है, उसका कंसर्न भी समझ में आ जाता है, उसकी एक्सपेक्टेशन भी समझ में आ जाती है। ठीक है। तो क्लाइंट साइकोलॉजी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही ध्यान रखना है कि फर्स्ट बायर है, विजिट करा हुआ है, या फिर एक्सप्लोरर है। और लेकिन आपको इतना वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि पता होना चाहिए आपको ये भी चीज़, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि यार ये इसको तो पता ही नहीं है, इसको छोड़ दो, बेकार है। नहीं, जज नहीं करना आपको। जो विजिट कर चुका है, जो देख चुका है, उसको थोड़ा सा वो क्या है, फिर वो डील मांगेगा आपसे कि कितने में दोगे, क्या दोगे, वो डील मांगते हैं आपको। उसमें भी आप मेरे से कनेक्ट करिए, उसमें आप लोग मत करिए, मैं बता देता हूँ। उनसे पूछिए कि सर आप क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। बताइए सर कि आप अगर आप देख चुके हैं तो कुछ, अगर आपको प्राइस अगर अच्छा चाहिए, यूनिट नहीं मिल रही, तो मुझे बताइए, मैं देख सकता हूँ आपके लिए। ठीक है। सेकंड ये। तीसरा फिर आपका जो होता है वो होता है डिसीजन मेकर, जिसको प्रोजेक्ट भी पता है, प्रोजेक्ट भी समझा दिया आपने, डिसीजन मेकिंग पावर भी उसके हाथ में, वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी होती है, और इन सब चीज़ों में आपका ट्रस्ट बिल्ट होता है। ठीक है। इन सब ये सब चीज़ें करने में, बात करने में, समझाने में, जब ये चीज़ आपको समझ में आती है, आप लोगों का ट्रस्ट बिल्ट होता है बायर के साथ। और रियल एस्टेट सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस पे ही चल रहा है गाइस आज। ये रियल एस्टेट से अगर आप ट्रस्ट निकाल देंगे ना, तो रियल एस्टेट नहीं है उसके बाद। ये बिजनेस कितना भी आप एआई ले आइए, कितना भी आप कुछ भी ले आइए, ह्यूमन टच मांगता है ये बिजनेस। इस बिजनेस में से अगर आप ह्यूमन टच निकाल देंगे, कितना भी एआई डाल दीजिए, कितना भी कुछ डाल दीजिए, वो आपका काम थोड़े से टास्क आपके फ्री वो कर देगा, इजी कर देगा। लेकिन इस बिजनेस में ह्यूमन टच की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से लेके अभी तक ह्यूमन टच निकाल देंगे, बिजनेस आपका कोलैप्स हो जाएगा। तो अपने आप को, आपको वो स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बनाना है, वेदर इट प्रोजेक्ट की नॉलेज हो, प्रोजेक्ट कन्विक्शन के ऊपर हो, कम्युनिकेशन के ऊपर हो, फॉलोअप के ऊपर हो, कुछ भी हो। ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो सेकंड आप, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है, फॉलोअप। फॉलोअप सिस्टम गाइज, फॉलोअप के साथ मतलब एक साइकोलॉजी देखी गई है ना, जो फॉलोअप होता है ना, लोग मूड के हिसाब से करते हैं, कि मूड हुआ तो कॉल कर लिया, मूड नहीं हुआ तो छोड़ो यार, ये नहीं लेगा, ऐसा वैसा करके अपना थोड़ा हम लोगों ने माइंड के अंदर कुछ करते हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो आपका फॉलोअप होता है ना, वो आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। फॉलोअप को कभी मत भूलिएगा। कभी नहीं, मतलब कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। 90% रियल एस्टेट एजेंट्स फॉलोअप ही नहीं करते, वो फर्स्ट कॉल करते हैं अपनी, सेकंड कॉल भूल जाते हैं, फिर वो दोबारा से शुरू करते हैं। मतलब वो बस बीज बोते जाते हैं, काटने का काम कोई और करता है। फॉलोअप ना करने का मतलब ये होता है, यू आर जस्ट प्लांटिंग द सीड, समवन एल्स इज कमिंग एंड दे आर क्रॉपिंग योर योर क्रॉप्स। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जिन भी लोगों से आप बात करते हैं, अगर आप 50 लोगों को फ़ोन कॉल करते हैं, तो 50 लोगों से आप बात करिए। ठीक है। 50 लोगों से बात करने के बाद उसमें से 5 लोग, 10 लोग जो आपसे बात कर रहे हैं, डिटेल्स मांग रहे हैं, जिन लोगों को डिटेल्स भेजी है आपने, उन लोगों को एक अलग शीट में बनाइए इंटरेस्टेड लगा के, और उनसे क्या बात हुई है लिखिए वहाँ पे। नेक्स्ट कॉल कब करनी है वो भी लिखिए वहाँ पे। सुबह जब भी आप काम करना स्टार्ट करें, अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगाइए, अगर आपके पास कोई सीआरएम वगैरह नहीं है, किस क्लाइंट को कब कॉल करनी है। फॉलोअप करिए अच्छे से। फॉलोअप करेंगे तो जिन लोगों से आप बात करके प्रोजेक्ट समझा के छोड़ चुके हैं ना, आप भूल जाइए कि क्या बात हुई थी क्या नहीं, पढ़िए उसे वहाँ पे, कॉल करिए दोबारा, अच्छे से हम्बल से स्माइल करते हुए बात करिए। स्माइल करने में कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन स्माइल एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ इंसान भी ना आपकी स्माइल से कनेक्ट हो जाता है, आपके बोलने के तरीके से हो जाता है। मेरे बोलने का तरीका हो सकता है किसी को पसंद आए, किसी को हो सकता है ना आए। हो सकता है सत्येंद्र जी का बोलने का तरीका किसी को पसंद आ जाए, किसी को ना आए। बट हमको अपना अपनी तरफ से बेस्ट देना है, बिकॉज हमें, हमसे कोई पैसे नहीं ले रहा है, कोई नहीं दे रहा है हमें कि हम हंस के बात करें। अच्छा, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना कि जिनको आप अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उसको फील हो जाता है वो। एंड हम लोग यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, तो हमें अपने काम में प्रोफेशनल होना है, हमें अपने काम में अच्छा होना है। हम अपने काम में क्लाइंट को ये फील कराना है कि वो सही हाथों में जा रहा है उसका पैसा। ठीक है। और ये जब चीज़ें, केयर की फीलिंग हमारे बैक ऑफ द माइंड में होती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे बातों में, हमारे एक्शंस में दिखती है बायर को। और बायर 10 जगह भी जाता है ना, तो लास्ट में जब वो कंफ्यूज होता है ना, वो उसी इंसान को चूज करता है जिस इंसान से उसको बात करने में ये फील होता है कि इंसान बढ़िया है। ठीक है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, बट ये आपको सबसे, हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट करना है। फॉलोअप में जितने भी लोगों से आपकी बात हुई, हर दिन सुबह उठिए, फॉलोअप करिए। किसको कितने बजे कॉल करना है लिखिए जहां पे आप बैठते हैं, रिमाइंडर सेट करिए कि मुझे इससे बात करनी है। व्हाट्सएप में कुछ भी चीज़ें होती हैं, कुछ डिटेल्स वगैरह आपकी होती हैं, उन लोगों को शेयर करिए। बताइए उन्हें कि क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। सब लोगों को इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करिए। व्हाट्सएप में टच में रहिए, क्लाइंट्स के नंबर सेव रखिए अपने पास, जिससे बात हुई, जो अच्छे से आपसे बात कर रहे हैं। कुछ होली, दिवाली, बर्थडे, कुछ भी कुछ होता है,
तो बहाना ढूंढिए उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर करने का, भेजिए। एक वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट मत भेजिएगा, क्लाइंट बोर हो जाते हैं उससे, उससे क्लाइंट भागते हैं दूर कि ये तो यार कुछ काम ही नहीं है, तो गुड नाइट गुड मॉर्निंग ही करता है। नहीं, ये नहीं। कुछ अच्छी अप्रोच निकालिए उनसे। कभी कुछ होली दिवाली आई, एक अच्छा सा मैसेज बनाइए। कभी हफ्ते में एक बार कॉल कर लिया, जिससे बात अच्छी हो रही, प्रॉपर्टी ले रहा है नहीं ले रहा है, लेकिन बात कर रहे हैं ना अच्छे से, बाद में लेगा। रेफरेंस मांगिए उन लोगों से कि सर आप तो नहीं कर रहे हैं, बट अगर आपको लगता है कि अगर आप काम कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से अपनी अप्रोच ये रखिए कि चलिए यार इंसान तो बढ़िया ही है ना, ये काम तो इंसान ही आएगा, ये नहीं लेगा कोई बात नहीं, इससे कुछ रेफरेंस निकालते हैं। क्योंकि होता है गाइज, मैंने निकाले हैं। जेनुअनली मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने निकाले हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको नहीं पता कि कौन सा एजेंट आओ, कौन आपको क्या दे जाए। एफर्ट्स अपने 100% लगाइए, दिमाग में रखिए ये भी होता है, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज। ठीक है। कॉल खत्म होने के बाद एक अच्छा सा मैसेज आपका होना चाहिए फर्स्ट कॉल के बाद। वो भी मैसेज क्या होगा वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ, कि मतलब आपको भेज दूंगा, चैट बॉक्स में डाल दूंगा। वो मैसेज आपका पहुंच जाना चाहिए क्लाइंट्स के पास। ठीक है। हाय, इट वाज प्लेजर टॉकिंग विद यू, आई एम मिस्टर आशुतोष, जिससे बात हुई आपकी। माय नेम इज सतेंद्र चौधरी एंड इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू एंड आई होप यू वट एवर वी हैव डिस्कस्ड, you have understood everything. It was pleasure talking with you. The best thing about this project is, sir, about Dubai, about this project, blah blah blah. So sir, please tell me when we can connect next time, your name, your number, your designation। इस तरीके से अपने एक अच्छा सा शॉर्ट मैसेज बना के उनको भेजना है, सो दैट क्लाइंट को रिमाइंड हो। और उसको मैसेज में ये भी लिखना है कि सर प्लीज डू सेव माय नंबर। जब भी क्लाइंट से बात करेंगे उनसे ये बोला, सर प्लीज नंबर सेव कर लीजिएगा। नंबर सेव होगा तो वो भूलेगा नहीं इतनी जल्दी आपको। और क्लाइंट का नंबर सेम आपको भी सेव करना है। जिससे 10 मिनट की कन्वर्सेशन आपसे होती है उस क्लाइंट से, तो हमेशा आप याद रखिएगा 10 मिनट की कन्वर्सेशन वाले क्लाइंट को नहीं छोड़ना होता। अच्छा है बुरा है जो भी है, लेकिन आपको बात कम्युनिकेशन रखना है उससे, अपना कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना है उससे। 2 दिन में 3 दिन में जब भी वो बोल रहा है फॉलोअप के लिए आपको करना है उससे। ठीक है। ब्रोशर भेजना है, उसके बाद प्रोजेक्ट की वीडियो आपको भेजनी है। उसके बाद फिर आपको प्रोजेक्ट का 2-3 ब्रोशर भेजने हैं, फैक्ट शीट भेजनी है, 2-4-5 चीज़ें भेजनी है। और वेट करना है इवनिंग तक, नेक्स्ट डे तक, जब भी उसने बोला है उसे फिर कॉल करिए। सर, मैंने आपको प्रोजेक्ट का ब्रोशर भेजा था, प्रोजेक्ट की वीडियो भेजी थी, कैसा लगा सर आपको प्रोजेक्ट? ठीक है। तो वो बोलेंगे कि प्रोजेक्ट अच्छा लगा नहीं लगा, कुछ ना कुछ बोलेंगे वो। बट उनको ये बोलना है कि सर, अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा है, अगर आपको जेन्युइनली ये चीज़ लगती है कि आपके लिए ये, इसके मतलब मैं आपको बता रहा हूँ सर, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों का आज तक इन्वेस्टमेंट करवाया है यहाँ पे, इन लोगों ने पिछले 6 महीने साल भर के अंदर अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन बनाया है। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप सर देखिए, लेना ना लेना दैट इज़ योर कॉल। बट मुझे इतना पता है कि सर जिस इंटरेस्ट के साथ आपने बात किया है, आपको देखना ज़रूर चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू सर, जितने भी लोगों ने देखा है ना, उनको इतनी क्लैरिटी मिली है ना, उन्होंने लिया या नहीं लिया, ये 6 महीने बाद लेंगे, साल भर बाद लेंगे। बट सर आपको मैं जेन्युइनली आज मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ ना, जो मैं आपको ऑप्शंस दिखाने वाला हूँ, जो मैं आपको एक्सप्लोर कराने वाला हूँ, सर इट इज़ गोइंग टू बी कंप्लीटली वर्थ इट। बोलेगा अच्छा सर, बस 20 मिनट का टाइम दीजिए, कम विद मी ओवर द जूम कॉल, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑप्शन व्हाट वी गाइस आर ऑफरिंग यू। बस शांत हो जाना है। उसके बाद आप देखिए वो क्या बोलता है। उसके बाद अगर इंटरेस्टेड नहीं होगा तो बोलेगा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बोलेंगे ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर। कुछ अपडेट्स में अगर मेरी तरफ से आता है सर, कुछ प्लान होगा फ्यूचर में, तो मैं आपको भेजूंगा, आप भी देखते रहिएगा सर, क्या पता कब आपका हो जाए। कोई नोन है आपका, जब क्लाइंट मना करे ना तो उससे रेफरेंस मांगिए, उसको अपने साथ ज्वाइन कराइए। जेनवनली बता रहा हूँ, एफर्ट्स तो लग चुके हैं ना, पता चल गया नहीं लेगा, अब उससे रेफरेंस निकालो, अब उससे रिलेशनशिप बिल्ड करो। बंदा नहीं छोड़ना है अपने को। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। बंदा नहीं छोड़ना है अपने को, बंदा मिल गया ना, अब उसको चूज जाओ पूरा। वो नहीं देगा तो उससे रेफरेंस मांगो, वो नहीं मांगेगा तो उससे वो और पूछोगे सर कितनों को जानता है, कहाँ काम करता है, क्या है? कुछ ना कुछ तो निकाल लो वहां से। जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं आपको, आप पर्सनली मिलते हो, पर्सनली जिन लोगों से मिलते हो, लेकिन आपका माइंड ऐसा होना चाहिए कि यार बंदा है ना अपने पास, बंदे की वैल्यू करो। वो ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, अच्छी बात है, नहीं ले पा रहा है तो कोई बात नहीं। उससे देखो कि उसके नेटवर्क में कौन कौन लोग हैं, कोई है ऐसा जो ले सकता है। एक मीटिंग लाइनअप करो उससे, फिर किस तरीके से काम कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्या पता कहाँ से बिजनेस आ जाए। ट्राई करने से आता है बिजनेस। ट्राई करिए, जेनविनली मैं आपको बता रहा हूँ, ट्राई करिए। ये आपका हो गया। दूसरी चीज, जो जूम कॉल पे आ जाता है, उसके बाद फिर क्लाइंट को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए फिर, कैसे करना है क्या करना है। ठीक है। फॉलोअप कैसे लेना उस क्लाइंट से फिर आप मुझे बताइए। अगर आप लोग फ्रेंडली हैं, तो मेरे साथ आप नंबर भी शेयर कर सकते हैं, फॉलो भी मैं ले लूंगा, मैं आपको बताता रहूंगा अपनी गूगल शीट में, आप अपडेट करते रहिएगा। क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या होती है, कभी 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 प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग, मीटिंग मैं करता हूँ ना और आप फॉलोअप अगर आप लेते हैं,
लेकिन मेरे इसलिए हेक्टिक भी हो जाता है, मैं इतने ज़्यादा फॉलोअप ले भी तो नहीं पाऊंगा। लेकिन होता है कि आप मेरे से पूछ लीजिएगा इससे फॉलोअप लेते समय क्या करना है, जो जैसी मीटिंग्स होंगी उसके हिसाब से। क्योंकि देखा ये गया ना, अगर मीटिंग मैंने ड्राइव करी तो मुझे पता है मैंने क्या बोला है उसे, मुझे समझ में आया उसके एक्सप्रेशन कौन सी जगह पे क्या थे, मुझे समझ में आया उसके क्वेश्चंस कैसे आए थे। तो उसके बाद ना उसका जो फॉलोअप होगा ना, तो कुछ चीज़ों के ऊपर होगा वो, उससे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कर रही थी, उसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ों पे था। स्टैटिस्टिकल फिगर के ऊपर था, ठीक है, उसके प्रोजेक्ट के लेआउट के ऊपर था, उसको यूनिट पसंद आई, उसे कैलकुलेशन समझ में आई, उसे पैसा पार्क करना है अपना वहाँ पे। तो जिस चीज़ में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट आ रहा था ना, उस चीज़ में हमें एम्फेसाइज करना होता है फॉलोअप में, और उसको ऑफर डिस्काउंट देके क्लोज करना होता है। ठीक है। तो फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। तो पहले दिन हम लोग डिटेल्स भेजते हैं, ब्रोशर शेयर करते हैं, लोकेशन वगैरह बताते हैं। नेक्स्ट डे फिर हम लोग उसको फॉलोअप करना स्टार्ट करते हैं। फॉलोअप के साथ साथ थोड़ा सा दुबई के एक आध दो पॉइंट्स अपने दिमाग में जो है कुछ बोल दी, सर टेक्स्ट भी सर इतना अच्छा है, ये है वो है, थोड़ा बात करने का कंटेंट हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। और जो भी उसने फाइनल अपनी डेट बोली है कि चलो मुझे इस दिन कॉल करना, इस वक्त कॉल करना, वो कॉल आपकी पहुंच जानी चाहिए उसे। कॉल पहुंचने से एक घंटा आधा घंटा पहले मैसेज भेज देंगे तो वो भी अच्छा होता है। मॉर्निंग में मैसेज भेज देंगे, हाय सर। तो ये आपका हो गया इस तरीके से। अब इसके बाद फॉलोअप आपको माइंडसेट समझ में आ गया, कम्युनिकेशन कैसे करना होता है, क्लाइंट साइकोलॉजी कैसे आपकी होती है। उसके बाद आपका फॉलोअप सिस्टम। ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी मैंने एक चीज देखी है, जब भी हम लोग ना प्रोजेक्ट बताना स्टार्ट करते हैं, लोगों से कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो हमको ना स्टार्टिंग में हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं। हमेशा आपको भी आएंगी। बट उन प्रॉब्लम से पता है क्या, आपको उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको देने होते हैं। ऐसा किसी के साथ नहीं होगा कि आपने बात करना स्टार्ट करो आपकी कम्युनिकेशन डे वन से अच्छी हो जाए, कभी नहीं होगी है। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब गाड़ी में आप पहली बार बैठे थे तो आप पहली बार बैठ के गाड़ी चलाना नहीं सीखे थे। जब आप इस दुनिया में आए थे, जब आपने चलना सीखा था तो आप गिरे थे, पहले आप सीधे दौड़े नहीं थे, हल्के हल्के करके दौड़े हैं। तो मैं चाहता हूँ सब लोग दौड़े हमारे साथ, लेकिन पहले कदम कदम कैसे चलते हैं पहले वो सीखिए। तो वही आज हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है यहाँ पे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर क्या होगा, क्लाइंट्स के ऑब्जेक्शंस क्या हैं। दुबई रिस्की है, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मेरा बजट नहीं है, सोच के बताता हूँ, यही ऑब्जेक्शंस होते हैं। फ्लैट इतना छोटा क्यों है, यही क्वेश्चंस होते हैं उसके। और इसको आपको स्मार्टली कैसे उसे हैंडल करना है, कैसे उसको पॉजिटिविटी के साथ बताना है, कैसे उसे सब कुछ करना है, अगर आपको ये करना आ गया तो समझ लीजिए आपको गेम समझ में आ गया। और जब हम एक प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं ना, तो हमको उस एक प्रोजेक्ट से पूरी लोकेलिटी समझ में आ जाती है। एग्री करते हैं मेरी इस बात से? इफ यू एग्री विथ मी जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स। जब हम एक प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं ना, तो हमें उस एक प्रोजेक्ट के प्रोस कॉन्स यूनिट्स प्राइस सब कुछ समझ में आ जाता है। सब कुछ। उसके बाद ना फिर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमको फिर सिस्टम को फॉलो करना है यार, कि देख प्रोजेक्ट समझ में आ गया, आशुतोष सर मीटिंग कर लेते हैं, क्लाइंट को हम लोग जूम कॉल पे ले ही आते हैं, कमीशन स्ट्रक्चर अपना अच्छा है ही, हमको करना क्या है, क्लाइंट्स को लेके आना है, और प्रोजेक्ट सेम है हमारा, यूनिट्स इतनी है ना, एक साल तक बेच सकते हैं उसे हम। एक साल तक अब आप ये सोचिए कि आपको कितना कमाना है वहां से। अब ये सारा का सारा लास्ट में जाके चीजें घूम के ना गोल अब वहीं पे कनेक्ट होती हैं। आपको कितना कमाना है वहां से, आप कितना पैसा लेके निकलना चाहते हैं वहां से। समझ रहे हैं? प्रोजेक्ट एक ही रहने वाला है, इसलिए मैं प्रोजेक्ट लेके ही ऐसा है जिसको बेचते रहो यार तुम। बेचते रहो उसे, एक बार समझ में आ गया, एक बार ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख ली, क्लाइंट्स कैसे ले ली, 10-15 मीटिंग्स करा ली, तो तुम रेडी हो उसके बाद। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ नहीं करना होता है। बस यहाँ तक हमारा काम हो गया। उसके बाद फिर हमारा क्लोजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, मीटिंग्स होनी स्टार्ट होगी, तो अगर समझ लो आप महीने की कम से कम अगर आप 15 मीटिंग भी करा रहे हो, तो आप समझ लीजिए एक महीने 15 हो, दूसरे महीने हो सकता है 20 हो, 12 हो। लेकिन इतनी हमारी मीटिंग्स अगर होती जा रही है ना, तो फॉलो भी हम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि पैसा उसके बाद गिरने वाला है आपके ऊपर। पाइपलाइन जब बनती है ना, तो उसमें टाइम लगता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगते हैं। लेकिन जब फटनी शुरू होती है ना, क्लाइंट्स जब पेमेंट्स करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद का टाइम होता है वो। शुरुआत के 2 महीने 3 महीने बहुत वैसे रहते हैं कि पेशेंस वाले। उसमें हमको सिर्फ एफर्ट्स लगाने होते हैं, और एफर्ट्स भी ऐसे कि हमें सोचना नहीं होता कि हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। सच में बता रहा हूं मैं आपको, उस समय हमको बस जितना ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एफर्ट्स हम लोग कर सकते हैं उतने हमें करने हैं। ठीक है। तो बस इस प्रोसेस को फॉलो करिए, और मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ गाइस, जितने बंदे मैं मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरे साथ डेडिकेटली काम करने वाले हैं ना, यहाँ से आप लोग पैसा बना के निकलेंगे। जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, जेन्युइनली जेन्युइनली आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ईजी है, लोकेशन बहुत प्राइम है, डेवलपर बहुत अच्छा है,
कम्युनिटी के अंदर फुल फ्लेजेडली काम चल रहा है, फुल फ्लेजेडली काम चल रहा है। इस प्राइस पॉइंट के अंदर हिंदुस्तान में ऐसा प्रोजेक्ट कभी नहीं मिलेगा किसी को, कभी नहीं मिलेगा जो दुबई के अंदर मिल रहा है इंटरनेशनल गेटवेज में। बस हमको ये बेचना कैसा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए भी मैं हूँ। बस आप अपना देखिए कि आपका किस तरीके से आप काम करना चाहते हैं। यस। ओके। कमीशन स्ट्रक्चर गाइस, इसके 7% के कमीशन है अजीजी के, 60 टके, 60 टका देता है, जिसमें से 50-50% की शेयरिंग है आपकी हमारे साथ। ठीक है। 50-50% मतलब 7.5 का हो गया हमारा ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया, आई थिंक 3.5-3.5%। 3.5% ये आपका होगा। 3.5, 3.5, 3.5 टका आपको मिलेगा इसका। और इसमें अगर सबसे कम यूनिट का, हम कोशिश करेंगे कि बड़ी यूनिट बेचें, बट अगर किसी का बजट कम है तो स्टूडियो अपार्टमेंट इसका 1-1.5 करोड़ का है। तो अब आप खुद से कैलकुलेट करिए कितना हो गया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा आज का सेशन था, और जिसमें हम लोग अभी काम करेंगे, अच्छे से करेंगे। और गाइस बहुत इजी है ये बहुत इजी है, और इसको ज़्यादा टफ मत समझिए, ये बहुत इजी है, आराम से आपको काम करना है इसमें। प्रोजेक्ट इतना अच्छा है, एक बार पकड़ा, एक बार ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम लोगों ने करनी स्टार्ट करी, तो आराम से हम कर सकते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ लास्ट में जो बोलने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से जितने भी लोग चाहते हैं लीड जनरेशन करना और लीड जनरेट करने के लिए रेडी हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं पहले मुझे कि आप में से कितने लोग हैं। सेशन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। लीड जनरेट जितने लोग करना चाहते हैं, जितने लोग पर्सनली मेरे साथ बैठ के, मेरे साथ आके सुबह एक जूम कॉल करना चाहते हैं, वो मुझे बताइए। उसके लिए आप सभी लोगों के लिए मैंने एक पैकेज बनाया है, जिसमें मैं आपको लोगों को कैंपेन सेट करके दूंगा। ठीक है। और ये वन टाइम कॉस्ट है, और ये 3 महीने के लिए रहेगा आपका। ठीक है। इसमें आपका 3 महीने का मैं आपका एक कॉस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि 3 महीने के लिए मैं आपके एक कैंपेन सेट करूंगा इसमें। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी खुद से आती, खुद से करना चाहते हैं, दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट इसमें आपको कैंपेन सेट करूंगा, आपकी कॉल्स स्टार्टिंग में कैसे लेते हैं वो कॉल्स आपको करनी सिखाऊंगा। उसके बाद आपकी जो जूम कॉल्स होती है वो तो मैं खैर करता ही हूँ, वो तो हमेशा करूंगा, उसमें कोई नहीं है। आपको कैसे फॉलोअप करना है, कैसे करना है, मॉर्निंग में सुबह एक जूम कॉल होगी आपकी, ऑल्टरनेट डेज पे होगी या रेगुलर होगी, वो आपकी होगी हर सुबह। और ये उन लोगों के लिए जो डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, वैसे रात के सेशंस होंगे तो होंगे ही होंगे, हफ्ते में एक सेशन, 2 सेशन, जिसमें प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग और ये। बट ये ऑल्टरनेट डेज में जो मैंने मॉर्निंग में रखने वाला हूँ ना, इसमें आप लोगों को पूरी डेडिकेटेड आपको ये पता चलेगा कि आज का क्या करना है, आज क्या करना है। तो इसकी मैंने एक वैल्यू रखी है 2499, 2,499 रुपये। आप में से जो भी लोग लगता है कि पर्सनल लेवल पे काम करना चाहते हैं, आके सीख के समझ के, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितने लोगों को लगता है कि आप करना चाहते हैं, कि मेरे साथ जूम सेशन भी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको कैंपेन वगैरह सेट करके भी दूं, और उसके बाद फिर आप लोग अपना लीड जनरेशन भी स्टार्ट करें, तो आप लोग कर सकते हैं सेशन के अंदर, मतलब एंट्री। एक पर्सनल लेवल पे आप लोगों को मैं बताऊंगा पूरा दुबई के बारे में, किस तरीके से दुबई करते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं। और जितने लोगों को लगता है दीपांशु ने जो सेशन बताया, लीड जनरेशन सीख गए आप लोग वहां से, आप वैसे करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। ये एक क्वार्टर का है, ये पर मंथ का नहीं है, ये मैं क्वार्टर 3 महीने का पैकेज है। मतलब कोई भी चीज़ मैं आप लोगों को ऐसे नहीं बताऊंगा कि जिसमें आपको 3 महीने तक देना होगा। ठीक है। मतलब हर महीने देना होगा, ऐसा मैं बिल्कुल नॉमिनल वो बता रहा हूँ कि मेरे वक्त के पैसे हैं ये, कि अगर मैं टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, तो मुझे मैं ऐसा नहीं आना चाहता कि मैं मॉर्निंग में उठ के बैठ के प्रॉपर माइंडसेट के साथ पूरी स्ट्रैटेजीज बना के अगर बैठूंगा आप लोगों के साथ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ। ठीक है। तो इसके अंदर मैं बिल्कुल प्रॉपर डेडिकेटेड आप लोगों को बताऊंगा व्हाट्सएप पे स्टेटस भी क्या लगाना है। कोल्ड कॉलिंग का डेटा अगर आप लोगों को चाहिए, जो डेटा आपको कॉल करने के लिए चाहिए, वो डेटा भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। उन डेटा पे कॉल कैसे होगा वो कॉल भी मैं आपको बताऊंगा, कॉल्स किस तरीके से आपको ओपन करनी है, स्क्रिप्ट दूंगा प्रॉपर। मतलब आपको प्रॉपर एक एक मेंटोरशिप मिलेगी आपको मेरी तरफ से। ठीक है। जिसमें आपको कैंपेन सेट करना, लोगों से बात करना, वो सब करना, आपको दुबई सेल करना सिखा दूंगा मैं इसमें। और ये 3 महीने का आपका रहेगा। 3 महीने तक आपको ऑल्टरनेट डेज में आपको मेरे तरफ से वो मिलेंगी, कॉल्स मिलेंगी, बात मिलेंगी, व्हाट्सएप कॉल्स होंगी इसमें, पर्सनल लेवल पे आप लोग टच में रहेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें रहेंगी। तो अगर आप लोगों को लगता है आप ये करना चाहते हैं, आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, और आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं बिल्कुल ऑल्टरनेट डेज पे, मॉर्निंग वाले टाइम पे, तो आप कर सकते हैं इसमें। जिसमें आप लोगों को मैं पूरा स्ट्रक्चर ट्रेनिंग दूंगा इसमें आपको दुबई के बारे में। ठीक है। और जिसको लगता है कि इसी तरीके से ठीक है, आपको आ रहे हैं, देख रहे हैं, जूम कॉल्स पे आएंगे, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन फॉर मी। बट अगर पर्सनल लेवल पे आप आना चाहते हैं, इनर सर्कल में एकदम आके मेरे साथ दुबई समझना, बेचना, ये सब करने के लिए, तो उसमें आप लोगों को फिर नेक्स्ट लेवल आपको इंटरनल चीज़ें पता चलने वाली हैं। तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं आप लोग मुझे बताएं, मैं आप लोगों को लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। आपको स्कैनर वगैरह जो लोग करना चाहते हैं वो उसको मिल जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग हमारे साथ करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। बट जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, जो ये अपॉर्चुनिटी है दुबई के बारे में, आप कैसे भी करते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे बिजनेस में क्लाइंट्स ही हैं।
और ये इसको जस्ट ट्रीट दिस बिजनेस एज योर कोर बिजनेस, इसको अपने कोर बिजनेस की तरह अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स कौन कौन से तरीकों से आप लेके आ सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर थ्रू कोल्ड कॉल्स, वेदर थ्रू सोशल मीडिया की लिस्टिंग्स, अपने लोगों से रेफरेंस निकाल के, लोगों से नेटवर्किंग करके, जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं आप करिए। बस एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि आपके पास बायर्स होने चाहिए। जितने ज़्यादा बायर्स आप लोग के पास आ रहे हैं, उतना ज़्यादा आप अपने बिजनेस के क्लोज जा रहे हैं। ठीक है। तो इट इज़ गोइंग टू बी सर 2499 ओनली। तो गाइज अगर आप में से कोई है जिसको लगता है जो करना चाहते हैं इसे अभी, तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों को स्कैनर वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा एंड यू गाइस कैन मेक द पेमेंट एंड यू कैन वर्क विद मी पर्सनली। जिसमें मैं आपको मॉर्निंग के टाइम पे ऑल्टरनेट डेज पे हम लोग कॉल्स करेंगे, बताएंगे आपको, जूम सेशन रहेगा एक 10-15 मिनट का, जिसमें आपके डेली के टास्क आपको पता चल जाएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, व्हाट्सएप पे स्टेटस क्या क्या लगाना है, लोगों से कॉलिंग कैसे स्टार्ट करनी है। और मैं एक ऐसा सेशन भी रखूंगा उसमें जिसमें आपको मैं अपने सामने कॉलिंग भी करवाऊंगा। सो दैट इज समथिंग कि हम लोग वर्चुअली कैमरे के उस पार आप, इस पार मैं, और मैं आपको प्रॉपर आपको बताने वाला हूँ कैसे काम करना है आपको। और उसके हिसाब से आपको लगता है कि अगर एक 2499 की वैल्यू कम है ज़्यादा है, आप खुद से डिसाइड कर लीजिए, और मैं किसी को भी मैं फोर्स नहीं करूंगा करने के लिए। इट्स योर अपॉर्चुनिटी, दिस इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर मैं पर्सनल लेवल पे जूम पे बैठ के आपसे कॉलिंग करा रहा हूँ आपको ट्यूशन दे रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। यस 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 सुबंधु चक्रवर्ती, दिस इज, ये मेरा पर्सनल टाइम है मॉर्निंग का, मैं आपको आपके साथ ओवर द जूम कॉल बैठ के आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है। और आपको एक प्रॉपर पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, पर्सनल नहीं होगी ये यहाँ पे, लेकिन रहेंगे सब लोग जितने भी आज हमारे साथ जुड़ेंगे इसके बाद ना, यू ऑल गाइज विल बी ओवर द जूम कॉल। और आप लोग सीखेंगे वहाँ पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन। और मैं जनरली बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा उसके बाद आपको रिजल्ट ना मिले, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। अब आप लोग देख लीजिए कि जितने भी लोग अगर इसमें करना चाहते हैं, आई विल गिव यू द जूम, मतलब आपको लिंक मतलब ये सर ये पूरा पैकेज ही है, मतलब 830 आपने तो उसको डिवाइड कर दिया, मतलब जो भी है ये। लेकिन हाँ डिजिटल, हाँ ये डिजिटल मार्केटिंग इसमें इंक्लूड है सर। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग में सिखाऊंगा नहीं, मुझे आती नहीं है, लेकिन मैं आपको कैंपेन वैम्पेन सेट करके पूरे दूंगा इसके अंदर, जिसमें आपको लीड जनरेट करना आपको आ जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस तो दीपांशु आपको देते हैं, वो आपको मिलती रहेंगी जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। बट दैट इज समथिंग जिसमें आप लोग मेरे से पर्सनल लेवल पे आके मेरे साथ बैठ के आप काम करेंगे। और मैं आपको ट्रेनिंग्स दूंगा इसके अंदर, ट्रेनिंग इन द सेंस कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कि जो मैं बता रहा हूँ अभी ये आप अप्लाई करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी अच्छा है, मतलब आपके ऊपर है ये। बट वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मैं जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा। वहाँ पे मैं रेक्टिफाई करूँगा प्रॉब्लम कहाँ है आपके अंदर। ठीक है। अभी तो मैंने बोला, कितनों को समझ में आया होगा, कितने लोग लेफ्ट से लेकर राइट से भूल गए, भूल चुके होंगे अभी तक। होता है ऐसा, इसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं है ये ऐसा होता है। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मैं बोलूंगा और जो आप करेंगे वो मैं आपके सामने फोन कॉल्स मैं भी करूंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसे करिए, जस्ट डू इट लाइक दिस। क्लाइंट से नेगोशिएशन का कैसे है, डिटेल्स कैसे शेयर करना है, वो सारी की सारी चीज़ें। तो गाइज सेशन को अभी यहीं हम वाइंड अप करते हैं। जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं इसको करने में, तो आप करिए इसे, ये मेरा, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कनेक्ट विद मी। एंड अगर आपको लगता है कि आपको करना है, कि वैसे कितने लोगों को लगता है कौन करना चाहता है इसके अंदर, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नहीं नहीं सर, डिजिटल मार्केटिंग का सेपरेट नहीं, इसी के अंदर है डिजिटल मार्केटिंग भी इंटरेस्टेड। तो गाइस जस्ट अ सेकेंड, आप लोग जो इंटरेस्टेड है आप मुझे व्हाट्सएप में पिन कर दीजिए एक बार। आप मुझे व्हाट्सएप पे पिन करिए और मैं आप लोग से पर्सनल एक कॉल करता हूँ इसके बाद, इस सेशन के बाद, एंड विल कनेक्ट और मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। और आई थिंक ब्रजेश इज इंटरेस्टेड, शुभेंदु, सतेंद्र, शुभेंदु चक्रवर्ती, शोएब, आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है। तो आई थिंक आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए एक बार, और उसके बाद मैं आपको को लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मैं आपको यहीं पे दे दूं, स्कैनर वगैरह प्रोवाइड कर दूं, आप यहीं करना चाहते हैं पेमेंट। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड आई कैन शो यू द स्कैनर राइट नाउ जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। मैं एक सेकंड रुक जाइए, और स्क्रीनशॉट आप मुझे एक बार शेयर करिए, उसके बाद मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह रेडी कर दूंगा। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। सो गाइज मैं आपको शेयर करता हूँ। हम्म, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी माई स्कैनर। तो
मैं आपको स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग 2499 का इसमें करके, और उसके बाद आप लोग मुझे कर दीजिएगा इसमें पे। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को, इसके बाद एक आपको व्हाट्सएप, आपको मेरी तरफ से कल कॉल आ जाएगा, एक ग्रुप हम लोग क्रिएट कर देंगे। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को सब कुछ चीज़ें बता दूंगा। ग्रुप क्रिएट करके हम लोग ऑल्टरनेट डेज पे कॉल्स रखेंगे अपनी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने लोगों से इंटरेक्शन करना स्टार्ट करना है। आपको कोल्ड कॉलिंग के लिए डेटा मैं प्रोवाइड करूंगा। कोल्ड कॉलिंग डेटा मतलब जो आप लोग बोलते हैं कि खरीदने में दिक्कत आती है, तो मैं आप लोगों को डेटा भी दूंगा, जिसमें आप लोगों को लगता है कि आप लीड जनरेट तो करेंगे ही, प्लस लीड जनरेट करने के अलावा अगर आपको लगता है कि आपको वो करना है, किस तरीके से आपको लोगों से कनेक्ट करना है, उसमें भी मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है। और जो लोग लीड जनरेशन अपना करना स्टार्ट करेंगे, लीड जनरेशन भी मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। अपार्ट फ्रॉम लीड जनरेशन, जो लोग आपके क्लाइंट्स आते हैं और दुबई के बारे में उनको कैसे बतानी चीजें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं गारंटी आपको इस बात की देता हूँ, 3 महीने तक अगर आपको जो भी चीजें मैंने बताई हैं, जो भी चीजें आपने करी हैं, आपको मैं जेन्युइनली 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 एक बात बोलता हूँ ना, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे ना यहाँ से, देन आप मुझसे बोलेगा कि आशुतोष आपकी ट्रेनिंग्स अच्छी नहीं थी। जो भी मैंने अपनी लाइफ में पिछले 4 साल दुबई के अंदर सीखा है, इंटरनेशनल रोड शोज करके, जितने भी डेवलपर्स की मैंने प्रॉपर्टी सेल आउट करी है अभी तक, वो सारा का सारा मैं आपको संपूर्ण जो ज्ञान है ना, वो आपको मैं देने वाला हूँ इस वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी इसमें करना चाहते हैं, तो अभी इसमें आप करिए, और उसके बाद फिर मैं अभी सेशन को हम लोग वाइंड अप करेंगे। और ये सेशंस हमारे चलते रहेंगे, इन सेशन में हमारे कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होने वाली हैं, ये तो एज इट इज़ हमारे चलेंगे जो हमारे हो रहे हैं। प्लस इसके अलावा जो भी हमारे जो हमारे ये पेड ट्रेनिंग्स होंगे, वन ऑन वन जो हम लोग सेशन करेंगे पब्लिकली, वो तो हमारे होंगे। बट जो हमारे ये जैसे सेशन हम लोगों ने आज किया था कि क्लाइंट से बात कैसे करनी है, फॉलोअप कैसे करना है, ये सब चीज़ें कैसे करनी है, ये सेशन भी हम लोग अपने ऑल्टरनेट डेज पे हम लोग, ऑल्टरनेट नहीं वीकली बेसिस पे हमारे ये भी चलते रहेंगे, सो दैट जितने भी लोग सीखने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे वो सीखें, बट जो लोग और लेवल पे करना चाहते हैं वो। ठीक है, तो गाइज आई थिंक डन। मैं अपनी स्क्रीन क्लोज कर दूं? अगर मैं अपनी स्क्रीन क्लोज कर दूं या फिर कोई कर रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 1 मिनट और चाहिए, 2 मिनट और चाहिए। अदरवाइज मैं अपनी स्क्रीन अपनी शेयर ऑफ करता हूँ। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, अदरवाइज मैं अपनी स्क्रीन जो है ऑफ कर लेता हूँ। योगेश, शुभिंदु, शोएब अख्तर, मिस्टर मांझी, सतिंदर, रोशन कुमार, प्रिंस मेहता, प्रीति, प्रमलेश, सचिन, लवप्रीत, जितेंद्र, दिनेश, दानिश यादव, अरुण रॉय, आनंद सिंह बिष्ट। ठीक है, ऑल राइट गाइस, सो आई थिंक 3 मंथ्स के बाद एम, हाँ दिनेश जी, अब देखिए आप कितना मीठा बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं हर दिन के 50 क्लाइंट्स आपको मिले, तो आपको बजट तो चाहिए होगा उसके बाद। बट ऑल टाइम मतलब आपको जनरली बताऊँ, 400-500 रुपये का बजट तो आपको पर डे का चाहिए इसमें। मैं आपको बोलूँ 10,000 रुपये का बजट तो आपको कम से कम रखना पड़ेगा मंथली। 10,000 रुपये का, 6,000 रुपये का, मतलब आपके ऊपर पॉकेट पे डिपेंड करता है। मैं आपको बहुत दोनों तरीके बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप करेंगे, किस तरीके से आप नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, तो यही हमारा है आज का। ठीक है, सो सेशन को हम लोग वाइंड अप करते हैं। तो इसके अलावा जितने को अब कोई है अभी जो पेमेंट करने को रेडी है, इफ एनीवन, अगर किसी को करना है तो मैं दोबारा स्कैनर अपना शेयर कर दूंगा। उसके बाद अदरवाइज हम लोग वाइंड अप करते हैं। ओके, दिनेश जी, यू वांट टू मेक पेमेंट राइट नाउ? दिनेश जी, अदरवाइज मैं स्क्रीन अपनी शेयर करूं? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जितने पेमेंट्स आए मैं अभी चेक करता हूँ, और जितनों के भी आए हैं मुझे स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दीजिएगा। दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, 63989790। ठीक है आशुतोष, और हम लोग अब यहाँ से, आज से आप लोग जितने भी दुबई को फुल फ्लेजली सेल करना चाहते हैं, अब आपको परसों से दुबई के बारे में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलने वाली हैं, और जो मेरे पर्सनल लेवल पे है, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो करनी पड़ेंगी आपको, और वो चीज़ों को फॉलो करिए। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले। दिस इज माई प्रोमिस टू यू गाइस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस। साइनिंग आउट नाउ। यस, आनंद सिंह बिष्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, बाय बाय, सी यू।